Hey guys, welcome to the Logical Podcast. I'm your host Hamad Anwar, and with me is Said Irfan. This is our fourth episode, and today we have a very special guest with us, and this guest is also one of my prior teachers. So before I continue, would you like to introduce yourself to us? I'm Dr. Zaid Halim and I'm working as a professor at the Faculty of Computer Science and Engineering of GIK Institute. I hope that's enough. All right. Right. Okay. Okay, sir. So before we start, can you tell us a little about where were you brought up and how was your early life like? Yes. So you would like to know the complete history. Yes, sir. So I should primarily speak in English or I Sir, can switch? it's all up to you. Up to you. Right, right. So I basically belong to a military family background, right? So, and I belong to the province of KP, but interestingly, my place of birth is Lahore, right? So initial 2 years I have been brought up there. Then I have lived in Sialkot, right? Then I have my initial schooling was in Peshawar. Right? So then in university days, then I joined University of Peshawar for my BS degree. Then for my masters and my PhD, I did it from National University of Computer and Emerging Sciences, Islamabad, All right. commonly known as FAST. All right. Okay. Right. Okay. So आपने बैचलर्स किस में किया था? अच्छा, मेरा बैचलर्स मास्टर्स और पीजी तीनों जो है ना वो कंप्यूटर साइंसेज में. Specializations have been varying. For example, BS of course is in computer science. And in masters, my masters was in computer science with specialization in data mining, whereas my PhD was in computer science with specialization in computational intelligence and game theory. Interesting. Alright, so if I can ask you one question कि उस वक्त आपको CS का क्या शौक था, मतलब why did you go towards CS starting में बैचलर्स के लिए? अच्छा, इस तरह था नहीं, ठीक है, कि मैं CS में गया, ठीक है, लाइक एनी बैरेट ऑफ मिलिट्री फैमिली, ठीक है. तो मेरे पेरेंट्स को था यार ये इसको ना हमने फ़ौज में भेजना है, राइट. तो और मुझे ना समहाउ मेरी इंक्लिनेशन इनिशियली बचपन में तो होती है, बंदा छोटा बंदा बच्चा होता है ना, तो वो कहता है आई विल बिकम पायलट. 10 दिनों बाद वो कहता है मैं कुछ और बनूंगा. 20 दिनों बाद या 2-3 साल बाद कुछ और बनता है. तो इनिशियल बचपन में तो थी थोड़ी, लेकिन व्हेन आई कंप्लीटेड माय FSC, तो फिर उस वक्त ना एक अब्बा जी से एक टसल रही कि यार ये फ़ौज में जाना है नहीं जाना. हमारा anyways I ended up doing my SSB and stuff and somehow I cleared that as well. लेकिन मैंने जाना नहीं था, ठीक है. तो बहरहाल फिर वो अब्बा जी से मुआहदा हुआ कि चलो यार इतना ही काफ़ी है. अच्छा, फिर उसके बाद हुआ इस तरह कि फिर वो जिस तरह अभी आई डोंट नो ये आज की जो जनरेशन है उसमें ऐसा है कि नहीं है, बट आई एम श्योर कि इस तरह होगा. जो लोगों से बातचीत होती है अक्सर यहाँ पे GIK में पेरेंट्स एडमिशन कराते हैं ना, तो उनसे फिर बंदा पूछता है कि भाई आप CS में क्यों आए या मैकेनिकल में क्यों जाना चाह रहे हैं. बच्चे से अलग बाद में बात करो तो पता चलता है कि वो तो फोटोग्राफी में जाना चाहता है, ठीक है. तो एनीवेज, तो मिलिट्री वॉज नॉट एन ऑप्शन. तो फिर वी डिसाइडेड कि हम इंजीनियर बनेंगे, राइट. तो अच्छा, आई डोंट नो अभी आजकल तो खैर इट्स नॉट लाइक दैट. प्रॉब्ली बैक इन दोज डेज इफ़ यू आर KP डोमिसाइल, so you have to go, you were supposed to go to a UET in KP. If you were Punjab domiciled, so you were supposed to go get admitted into UET Lahore and stuff, no? So I along with my father, we went to UET Peshawar. अच्छा, वो उधर बस टिपिकल जो उन दिनों एक सरकारी दफ्तर का माहौल था. एडमिशन ऑफिस की तरह गए, तो उस हमने कहा एडमिशन लेना है, ठीक हो गया, एडमिशन लेना है, फ़ीस ये वो पूछ लिया. तो उसने पूछा कि FSC में मैं प्री इंजीनियरिंग भी वो है, तो मैंने कहा प्री इंजीनियरिंग है. फिर कहा नहीं आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, क्योंकि मैंने मैट्रिक में तो केमिस्ट्री पढ़ी थी, लेकिन जो इंटरमीडिएट जिसको ICS कहते हैं, ठीक है, उसमें मैंने केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर्स ले ली थी, क्योंकि मुझे सॉर्ट ऑफ शौक था. तो मैंने कहा नहीं मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी. तो वो जो भी साहब थे उन्होंने 10 करके खिड़की बंद कर दी. ठीक है, मतलब कुछ कहा नहीं, 10 करके खिड़की बंद कर दी. तो इट वाज लाइक क्योंकि उस वक्त अभी ये रिसेंटली ना PEC ने PCS अलाउड
कि जो ICS बैकग्राउंड से हैं वो तमाम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में एडमिशन ले सकते हैं रिसेंटली, प्रॉब्ली कपल ऑफ वीक्स बैक। तो मैं तकरीबन उनके 20 साल लेट हो गया उस सारे में। खैर एनीवेज, तो फिर आई डोंट नो आपने पेशावर यूनिवर्सिटी देखी है कि नहीं देखी। तो इट्स पेशावर यूनिवर्सिटी की जो मदर है ना, मदर, वो इस्लामिया कॉलेज है, ठीक है। इस्लामिया कॉलेज के बाद पेशावर यूनिवर्सिटी बनी है। आई होप आई एम नॉट मिस कोटिंग द हिस्ट्री, लेकिन जो मुझे मालूम है। फिर जो UT पेशावर है और जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये पेशावर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस थे, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड कॉलेज ऑफ मेडिसिन। फिर ये इवॉल्व होते होते अपनी यूनिवर्सिटीज़ बन गए। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनी है, फिर फॉरेस्ट कॉलेज भी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इट्स ह्यूज यूनिवर्सिटी, जस्ट लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। तो फिर मैंने आई गॉट एडमिटेड इन यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। ऑल दो कि अभी ये थोड़ी खैर लंबी बात हो जाएगी मेरी, लेकिन ये है कि ये जो सरकारी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं ना, ये करती इस तरह है, आजकल इतना नहीं है क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, तो ये अपनी एफिलिएशंस भी देती हैं आगे कि फॉर एग्जांपल डिग्री कॉलेज XYZ को लेट्स से पंजाब यूनिवर्सिटी ने एफिलिएशन दे दी, तो वो बच्चा जो है ना, लेट्स से BS केमिस्ट्री कर रहा है, BSc केमिस्ट्री कर रहा है या कंप्यूटिंग कर रहा है, तो वो पढ़ेगा वहाँ पे डिग्री कॉलेज में, और उसको जो उसके एट द एंड ऑफ द डे डिग्री जो मिलेगी वो पंजाब यूनिवर्सिटी की मिलेगी या कराची यूनिवर्सिटी की मिलेगी। तो हमने जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, हमारा बैच था, तो दैट वाज प्रॉपरली इन द यूनिवर्सिटी। अच्छा, लेकिन ये जो दूसरे एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं ना, उसमें क्वालिटी के बड़े इश्यूज होते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ कि इंजीनियरिंग काउंसिल अपनी एक्रेडिटेशन विजिट्स करती है, इसी तरह कंप्यूटिंग काउंसिल है, वो एक्रेडिटेशन विजिट्स करती है। तो जनरली जो डिग्री कॉलेजेस या एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं ना, उनके विजिट्स वो नहीं करते, ठीक है, जिसकी वजह से क्वालिटी इशूज़ और फिर वहाँ पे क्वालिटी डिफिकल्टी दैट रिमेंस एन इशू। तो खैर, ये आपने बैकग्राउंड बताते बताते मैंने आपको ये बता दिया। लेकिन इससे एक ज़िमनी बात वो ये है कि अब चूँकि ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी, ये एफिलिएशन देती हैं ना दूसरे कॉलेजेस को एंड स्टफ, ये हम जब स्टूडेंट्स थे तो वी वर लाइक यार, ये मतलब हम यूनिवर्सिटी में प्रॉपर पढ़ रहे हैं और प्रॉपर सेटअप है, अच्छी फैकल्टी है और अच्छी इन्वायरमेंट है, और वो बंदा जो XYZ है ना, वो एक एफिलिएटेड कॉलेज है ना, उसके टीचर्स क्लासेस लेते हैं, लेकिन वो एट द एंड डिग्री भी उसकी सेम होती है ना। तो ये यूनिवर्सिटी ऐसा करती क्यों? तो खैर बाहर होते होते अब हम जब यूनिवर्सिटी का सारा सेटअप देखा, तो नाउ वी नो कि ये वो यूनिवर्सिटीज़ जो होती है ना, फॉर एग्जांपल जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है, दे कैन चार्ज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑफ कोर्स दे आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट्स, बट टू कवर अप देयर कॉस्ट, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो पब्लिक के लिए हैं, और वहाँ पे हर किस्म के बैकग्राउंड से, वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी लोग आए, तो दे हैव टू मेक श्योर कि फ़ी जो है ना वो सब्सिडाइज्ड हो। लेकिन फिर उन्होंने अपने खर्चे भी पूरे करने हैं, तो खर्चे किस तरह पूरे होते हैं कि वो डिग्री कॉलेजेस को या दूसरी जगह पे जो हैं उनको एफिलिएशन दे देते हैं। एफिलिएशन में क्या होता है कि वो कॉलेजेस जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एनुअल फ़ी पे करती हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ी, एंड तो दैट इज सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। लेकिन रिसेंटली चूँकि और यूनिवर्सिटीज़ ढेर सारी खुल गई हैं और गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई हैं, तो वो जो मॉडल है ना, वो फॉर एग्जांपल अब जहाँ पे एक कॉलेज के लिए ऑप्शन थी कि एक ही यूनिवर्सिटी एक सूबे में उसके साथ इट कैन गेट एफिलिएटेड, तो अब उसके पास 25 अदर ऑप्शन हैं, ठीक है। तो वो जो पूल ऑफ मनी है ना, वो भी डिवाइड हो गया। तो आई डोंट, मैं आपके सवाल को कहाँ से कहाँ ले गया हूँ, लेकिन ये है कि इट्स लाइक दैट। So by the way, which year was this? व्हेन आई ग्रेजुएटेड, When जब आपका एडमिशन हुआ था? हाँ, 2000 जनवरी 2000। 2000, अच्छा। तो तब तो GIK भी थी यहाँ पे, तो हाँ। why did you opt for Peshawar University Yes, and why not for GIK? exactly. Good question, ठीक है। अच्छा, आई रिकॉल कि उससे पहले भी, लेकिन ये है कि व्हेन आई, अच्छा ये मैं थोड़ा और पीछे चला जाता हूँ, थोड़ा सा फिर आपके सवाल पे आता हूँ। वो अच्छा, मुझे ना आई वाज लाइक इन 7th और 8th, नहीं, मे बी आई वाज इन मैट्रिक, राइट, आई वाज इन मैट्रिक, और मेरे अब्बू को ना पता नहीं किसी ने कहा कि यार ये बच्चों को कंप्यूटर पर लगा दो, ठीक है। अब जैसे अब मैं आई एम पेरेंट माई सेल्फ, आई हैव गॉट 4 किड्स अलहमदिल्ला, ठीक है। तो अब वो बंदा जो पेरेंट बन जाता है ना, फिर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता है, ठीक है। तो
अब चूँकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं तो मैं उनकी डाइट शाइट के बारे में सोच रहा हूँ, तो उनको एक्टिविटी दैट्स ऑल। जब बड़े होंगे तो उसी तरह सेम गोज़ फॉर योर पेरेंट्स। तो खैर, तो एनीवेज़, तो अब्बू को जो था ना, तो उन दिनों ठीक है, अब्बू ने कहा इसको इनको बच्चों को कैसे कंप्यूटर, तो समबडी ही गाइडेड माय फादर, तो उन्होंने हमें एक कंप्यूटर लेके दे दिया। अच्छा, वो कंप्यूटर जो था ना वो पेंटियम 2 था। अच्छा, ये इट वाज अराउंड प्रॉबली 98 और 97, 1998 और 97, राइट। अच्छा, मेरा दोस्त होता था, बड़ा अच्छा मेरा दोस्त है, आजकल मुझे नहीं पता कहाँ है, प्रॉब्लम इज इन यूएस, रमीज़ कुरैशी उसका नाम है, ठीक है। मे बी इफ ही लिसन्स टू दिस, सो ही कैन कनेक्ट टू मी। अच्छा, उसके पास पेंटियम 1 था, ठीक है, और वो उससे पता चला तुम्हारे घर में पेंटियम 2 आया और तुम मुझे दिखाओ ये पेंटियम 2 ना। अच्छा, उसकी रैम जो थी ना वो 2 MB रैम थी उसकी। कितनी? 2 MB, ठीक है, 2 MB उसकी रैम थी और 1.8 GB उसकी हार्ड डिस्क थी टोटल, ठीक है। और मैंने कहा नहीं नहीं यार, वो तो घर में हमारा बड़ा जो है ना वो हम तो दिखा ही नहीं सकते, ठीक है। तो और वो ही सो एक्साइटेड, नहीं 2 MB उसकी रैम है। अब जो कैन जस्ट इमेजिन, अभी तो 2 MB में तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है। खैर, एनीवेज, अच्छा वो जब हुआ तो इनिशियली तो उस पर मैं गेम्स शेम्स खेलते रहते, नीड फॉर स्पीड चलती थी उस पर, वो खेलते रहते थे। फिर सिंस आई हैड कंप्यूटर्स इन माई मैट्रिकुलेशन एज वेल एंड माई FSC एज वेल, तो उन दिनों हम एक लैंग्वेज पढ़ते, बेसिक, एक होती है विजुअल बेसिक, ठीक है, लेकिन एक थी उसका प्रायर वर्जन आप कह लें GW बेसिक, और एक और लैंग्वेज थी जिसको कहते हैं फोर्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, मैं फिर और हमारे अब्बा जी ने उसके साथ हमें प्रिंटर भी लेके दिया था, और मैं क्या करता, मैं फोर्ट्रॉन और GW बेसिक ना प्रोग्राम बनाता था, ठीक है। और यानी कि सेल्सियस में टेम्परेचर लिया, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया, 3 नंबर यूज़र से लिए, उनको एवरेज निकाल दी, या एरे में से लार्जेस्ट नंबर निकाल दिया, और बड़ा मुझे, और उसके बाद सम हो ना, और उसके बाद मुझे ये था कि प्रिंटर भी साथ था, तो मैं उसका कलर प्रिंट निकालता, और एक मेरे पास फोल्डर होता था जिसमें वो लगाता। ठीक है, और फिर जो कभी, और ये मैंने ना, और ये आप यकीन नहीं करेंगे, बना बना के मैंने किसी को दिखाई भी नहीं आज तक, लेकिन मुझे वो खुद ही बना बना के ना मैं वो करता था। समहाउ वो बस मुझे प्रोग्रामिंग का वो क्रेज़ हो गया। और ऑनेस्टली उस वक्त तक, यानी कि जब तक मैं सर्च करता था, तो मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं था कि आई विल बिकम अ कंप्यूटर साइंटिस्ट वन डे। उसकी वजह ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट 97, और प्रॉब्ली उस वक्त ना फुल फ्लैज 4 years कंप्यूटर साइंस डिग्री थी भी नहीं पाकिस्तान में, ठीक है। वी वर लाइक माई बैच वॉज प्रॉब्ली थर्ड बैच इफ़ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, जिसकी फुल 4 years बैचलर्स डिग्री कंप्यूटिंग। उससे पहले जो थी BSc कंप्यूटर साइंस के नाम से डिग्री होती थी, जिसमें एक्चुअली कंप्यूटिंग के ना CS के 2 या 3 कोर्सेज होते थे, यानी कि आपके पूरे अभी तो हमारा होता है ना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, एनालिसिस एल्गोरिथम, कंपाइलर, ऑटोमेटा, इमेज प्रोसेसिंग, ये एंड स्टफ। नहीं, उस वक्त बस 2-3 बाकी स्टैटिस्टिक्स के, फिजिक्स के और इस तरह के कोर्सेज होते थे। तो अच्छा, ये दैट वाज द बैकग्राउंड। अच्छा, फिर जब खैर एनीवेज, अब आपके सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो व्हेन आई वाज सपोज टू गेट एडमिटेड इनटू यूनिवर्सिटी, सो और उन दिनों GIK भी थी ऑफ कोर्स, और एक और यूनिवर्सिटी भी थी जिसके कितने कैंपसेस हैं पाकिस्तान में। उसके इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है, पेशावर में है, फैसलाबाद में है, ठीक है, प्रॉब्लम मुल्तान में वो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी था, तो उसका प्रोस्पेक्टस भी मेरे पास था, लेकिन वो एक्चुअली जब वो उसकी फ़ी देखी ना, ठीक है, तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ डील ब्रेकर एट दैट टाइम फॉर अस। लेकिन बाद एनीवेज, I feel very satisfied. Whatever I ended up doing my PhD from the university which I just mentioned, and I ended up doing my job in the university which you are mentioning, right? So, but ये है कि इनिशियल डेज में कोई भी डोमेन में आप इनिशियल डेज में यू गेट इनटू दैट ना, तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो प्रॉब्ली आई एम गेटिंग द एडवांटेज ऑफ दैट, ऑल्दो आई एम नॉट अ पाइनियर। हमारे पाइनियर्स वो लोग हैं कंप्यूटिंग में पाकिस्तान में, जिन्होंने डिग्रीज जो है ना वो BSc मैथमेटिक्स के बाद आए हैं, या उसके बाद आए हैं। दे आर बिकॉज दे आर द वन हु क्रिएटेड दिस 4 years BS डिग्री। जिस तरह अभी हम आजकल वी कॉल आवर सेल्फ पाइनियर्स ऑफ BS in AI और BS in लेट्स से साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। हालांकि हम खुद साइबर सिक्योरिटी में वी आर नॉट दैट मच एन एक्सपर्ट, लेकिन ये है कि वी सी के नेक्स्ट 15-10 years दे आर गोइंग टू फ्लाई हाई।
ठीक है. चलो so moving on to the fact कि आपने मास्टर्स अपना किया था with PhD वगैरह, what made you choose कि after doing your PhD you start doing your job in GIK or हाँ teaching? सही नहीं इस तरह मैं मेरी लाइफ ना और आई बिलीव कि बहुत से लोग प्लानिंग इज़ गुड कि आप ये करेंगे और ये बनेंगे विच इज़ गुड ठीक है वी नीड टू हैव अ प्लान तो यू एग्जीक्यूट और गेट क्वालिफिकेशंस अकॉर्डिंगली ठीक है जब मैंने BS कर लिया कंप्यूटर साइंस में तो उसके बाद ना आई वाज लाइक बस ठीक है काफ़ी हो गया ठीक है तो मैंने पेशावर में ही एक सॉफ्टवेयर हाउस था वहाँ पे जॉब कर लिया एज अ वेब डेवलपर दिस वाज 2005 जनवरी फरवरी ठीक है और मेरी तनख्वाह थी पहली तनख्वाह मेरी थी 6,000 रुपये ठीक है 6,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी और 4,000 रुपये मैं अबू से घर से मंगवाता था खर्चे पूरे करने के लिए ठीक है और अच्छा ये मैंने 1-2 महीने किया उसके बाद मेरे अब्बा जी ने मुझे कहा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो ठीक है कोई सही जॉब करो या गेट अ बेटर क्वालिफिकेशन ऑल द BS कंप्यूटर साइंस गुड लेकिन ये है कि अब वो एक्सपोजर फॉर एग्जांपल दैट वाज अ लोकल सॉफ्टवेयर हाउस ठीक है बट 100 or 150 kilometers away in Islamabad there are multinational organizations ये मैं आपको 2005 जनवरी फरवरी की बात बता रहा हूँ अदरवाइज आज दिस इज़ अप्रैल 2023 आज की डेट में KPIT बोर्ड का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है टॉप नॉच मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल एफिनिटी और बाकियों के नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे ठीक है आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एफिनिटी लेकिन दे हैव इनिशिएटेड देयर सेटअप इन पेशावर एज वेल ठीक है अदरवाइज बैक इन दोज डे थोड़ा आप ट्रैवल करें आपको इस्लामाबाद और लाहौर जो पाकिस्तान की सिलिकॉन वैली है ना यू गो देयर यू गेट गुड जॉब इन अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एनीवेज लेकिन मैं अपना आपको डिसीजन मेकिंग जॉब पे पूछा वो बता रहा हूँ एनीवेज देन है चलो क्या करें अच्छा उन दिनों हमारे यहाँ जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में था हमारे यहाँ ना पेशावर यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मेरा हॉस्टल था हमारे हॉस्टल के करीब ना यूनिवर्सिटी का पहला रेडियो स्टेशन बन रहा था कैंपस रेडियो स्टेशन वो कौन बना रहा था वो कोई जर्मनी से कोई टीम आई थी वो बना रही थी अच्छा वो यू सी पीपल यू गेट फैसिनेटेड तो आई वाज लाइक अच्छा अब मैंने जर्मनी जाना है अपने मास्टर्स के लिए राइट अच्छा ये हो गया अच्छा अब मैं घर वापस गया नहीं ठीक है well आई वॉज लिविंग इन हॉस्टल मैं घर वापस गया नहीं मैंने क्या किया मैंने एक जर्मनी में ना एक इशू तमाम नहीं मतलब not in every country but in many countries they offer their degree programs in their own language ठीक है बाज़ इंग्लिश में अगर इंग्लिश लैंग्वेज डिग्री भी हो अगर आपको ऑफर करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में बट दे रिक्वायर यू टू नो देयर ओन लैंग्वेज तो मैंने एक कोर्स स्टार्ट कर दिया जर्मन लैंग्वेज का और मैंने सीख ली फॉर एग्जांपल जर्मन में सॉरी को कहते हैं एंचुल्डिकॉन्ग मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग करेक्टली गिनती है 0 1 2 3 4 5 8 9 10 ये मैंने 0 1 2 3 4 और बड़ा पता नहीं क्या कुछ सीख लिया अभी तो भूल गया मुझे ठीक है ये प्रोनाउंसिएशन आई रिकॉल डॉक्टर फिदा मतलब मेरे एक बहुत बड़े मेंटर हैं GIK में प्रोफेसर रहे हैं ही इज़ जस्ट रिटायर्ड तो उनको मैं एक दफ़ा कहानी सुना रहा था तो मैंने उनको ये सारी सुनाई उन्होंने सारी मेरी प्रोनाउंसिएशन में गलती निकाली ठीक है तो लेकिन ये है कि बार ये अच्छा उसके बाद मैं गया घर ठीक है घर में गया मैंने तो अपनी वालदा को खुशखबरी सुनाई कि मैं तो जा रहा हूँ जर्मनी में ओके बाय बाय टाटा तो एडमिशन्स के लिए मैंने अप्लाई किया कि यार कोई आप यकीन नहीं करेंगे कोई 3 दिन तक मेरी वालदा मोहतरमा रोती रही कि तुम तो चले जाओगे उधर और तुम जो है ना वो उधर ही हो जाओगे किसी गोरी से तुम शादी कर लोगे और ये और वो ऑल दो पता नहीं शायद उनको मेरे बारे में पता था कि ये ऐसे करेगा एनीवेज लेकिन ये अच्छा वो दिन है और आज के दिन मैं पाकिस्तान में हूँ ठीक है तो इट्स लाइक दैट अच्छा तो खैर एनीवेज फिर उसके बाद फिर द ब्रांड्स विच आई हैड आई वाज लाइक जो मास्टर्स करते हैं ठीक है तो द ब्रांड इन माय माइंड वर GIK फास्ट और देयर वाज अनदर वन प्रॉब्ली यस लम्स तो खैर आई अप्लाइड टू GIK एंड फास्ट लम्स मैंने नहीं किया क्योंकि मतलब मैं वेयर आई लिव्ड तो मुझे थोड़ा दूर पड़ता था तो आई गॉट एडमिशन इन बोथ और आई एंडेड अप जॉइनिंग फास्ट
और फिर फास्ट जो मैंने कर लिया तो फास्ट में मास्टर्स के बाद आई जॉइंड एक्चुअली इंडस्ट्री आफ्टर माई मास्टर्स. आई जॉइंड टेक्नोलॉजिक्स एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. दिस इज़ लाइक 2006 or 7 प्रॉब्ली. मैं टेक्नोलॉजिक्स ज्वाइन किया और टेक्नोलॉजिक्स ने अपना टेक्नोलॉजिक्स के ऑफिस पाकिस्तान में जो है ना वो लाहौर में है. सिंस मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, अभी इन्होंने और बना ली हूँ ग्लोबली भी तो, लेकिन पाकिस्तान में इनके लाहौर में है, कराची में है, इस्लामाबाद में है. इस्लामाबाद का आई वाज प्रॉब्ली सेकंड एम्प्लॉय दे हायर्ड. ठीक है, तो वो नया नया एक सेटअप था. हमारे मैनेजर होते थे आशिर फसी. ठीक है, जस्ट नाइस जेंटलमैन ना. और टेक्नोलॉजी से मैंने ज्वाइन किया. मैंने कहा बस इधर टेक्नोलॉजी में रहूँगा. ठीक है, और लेकिन ये है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है ना वो डिफरेंट है. यानी कि वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम करते हैं और फिर वो एक लाइफ डिफरेंट है. रातें भी लगी उसमें कई प्रोजेक्ट्स को डिलीवर. आई नो हम पहला जो प्रोजेक्ट हमने किया वो SECP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. हमारा ऑफिस टेक्नोलॉजीज का ब्लू एरिया में था, तो SECP जो सऊदी पार्क टावर है उसके साथ एक और टावर है SECP का, तो वहाँ पे हमने वो किया. तो अक्सर वीकेंड भी लग जाता है, लेकिन उसमें ये है कि यू गेट एक्स्ट्रा पे और यू गेट फ्री लंच और डिनर. सो हम तो थे लगाओ टाइम लगाओ कोई मसला नहीं है, क्या करना है वापस जाके. तो इट वाज लाइक दैट. लेकिन जब मैं टेक्नोलॉजिक्स में था तो एक दिन अचानक मेरे प्रोफेसर की मुझे कॉल है. प्रोफेसर को जिनके साथ मैंने मास्टर्स का थीसिस किया था ना, डॉक्टर अब्दुल रऊफ बेग. ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा जाहिर यार वो इधर पोजीशन आई हैं फास्ट में लेक्चर के, तो अप्लाई कर लो. मैंने कहा सर ये तो ठीक कहते नहीं, तुम अप्लाई तो करो. खैर मैं आई एंडेड अप अप्लाइंग और मुझे जॉब ऑफर आ गई वहाँ से. ठीक है, और फिर देन आई जॉइंट फास्ट. अच्छा, वो इसमें इंटरव्यू की ना बात है, मैंने फास्ट में जब आई डोंट मैंने फैसला किया था मैं नाम नहीं लूँगा यूनिवर्सिटियों के GIK के अलावा, लेकिन मैंने ले लिया. चले कोई मसला नहीं है. तो खैर चलो किसी की एडवर्टीजमेंट होगी, विल चार्ज दैम. तो खैर फास्ट में मैंने जब इंटरव्यू दिया ना, एंड आई वाज लाइक यार इधर सभी मैं मास्टर्स किया, इंटरव्यू दूंगा, ये सारे मेरे अपने टीचर्स हैं, तो बस इधर फूलों से मुझे मारेंगे और कहेंगे आ जाओ ये दफ्तर है बैठो. मैं तो गया, उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल मुझसे पूछे प्रोग्रामिंग के. अच्छा जाते हुए पता क्या हाँ, हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने जाते हुए कहा कि यार बेटा आपने ना आज ऐसा करना C++ की बुक लेके पढ़ लेना. ठीक है, ये उन्होंने. अच्छा मैं निकला उधर से एंड आई वाज लाइक मेरी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू भी थे कि यार ये क्या हो गया. और व्हेन आई गॉट हायर्ड पहला कोर्स थी जो मैंने पढ़ाया, मैंने C++ का पढ़ाया. यानी कि वो प्रोग्रामिंग था फंडामेंटल्स का, तो वी वर टीचिंग C++. Anyways, fast then I joined fast as lecturer. After one semester of my job, there was a faculty development program. फास्ट का जो है वो आपको स्पॉन्सर करते हैं PhD में. दे डोंट चार्ज यू एनी फ़ी. इंटरेस्टिंगली बैक है दोज डेज देयर वाज नो बॉन्ड एज वेल. अब GIK का भी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और आई डोंट नो भी फास्ट ने भी शायद कर लिया, नो आइडिया अभी का. तो उसमें ये था कि आपने PhD कर ली, उसके बाद ये नहीं है कि 10 साल सर्व करना है, 5 साल सर्व करना है. तो आई डिड माई PhD इन दैट. तो फ्री में मुफ्त में PhD की तनख्वाह भी में फुल फ्लैज मिलती थी, और उधर ही बैठे हुए थे, प्रोफेसर का भी सामने ही दफ्तर था. तो 23 नवंबर 2010 को मैंने अपना PhD थीसिस डिफेंस किया, फिर मैं डॉक्टर बन गया. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ. अच्छा अब आगे ये सॉरी आपका सवाल तो एक लाइन था, मेरा जवाब लंबा है, लेकिन चलें सुन ले स्टोरी. फिर व्हेन आई कंप्लीटेड माई PhD एंड आई वाज कंटिन्यूइंग एट फास्ट, लेटर देयर वाज अ कॉमन फ्रेंड जो कि मेरे साथ वहाँ पे जो हैं कुलीग थे, डॉक्टर काशिफ ज़फ़र. वो आजकल फास्ट लाहौर होते हैं, और उन दिनों फास्ट इस्लामाबाद थे, उनके साथ उन्हीं का ऑफिस था. और वो काशिफ ज़फ़र जो है ना, उन्होंने अपनी लेक्चरशिप के ज़माने में GIK में सर्व किया था. ठीक है, और वो मुझे कहते हैं यार ज़ाहिद तुम अब GIK ज्वाइन करो. और जो काशिफ ज़फ़र हैं उनके दोस्त यहाँ पे डॉक्टर मसरूर. अच्छा, ठीक है, डॉक्टर मसरूर थे. तो वो और इधर फैकल्टी इनको चाहिए थी. एनीवेज, तो मसरूर वॉज सर्चिंग, वो फैकल्टी सर्च कमेटी है जो उसमें थे, उन्होंने काशिफ को कहा, काशिफ ने मुझे कहा, उन्हें लगा यार ये ज्वाइन कर लेगा. एनीवेज, अच्छा उन दिनों जो भी GIK की सैलरी थी ना वो कम थी, जो मैं आई वाज विड्रॉइंग, लेकिन वो इस तरह कम नहीं थी हमें वो क्योंकि मुझे उस अपना GIK कभी गया भी ना,
तो GI वॉज ऑफरिंग फ्री एकोमोडेशन एंड सो मैनी पर्क्स एंड बेनिफिट्स, तो सैलरी तो वैसे ही मतलब बाकी चीज़ें आपको फ्री थी एनीवेज। तो एक दिन मैं फास्ट में था तो मुझे काशिफ मिला, वो कहता है यार वो डॉक्टर मसूर ने मैसेज किया, उन दिनों मसूर साहब ने PhD नहीं की थी, मसूर ही कहते थे, तो खैर अब तो डॉक्टर हैं तो अब कहना चाहिए। तो डॉक्टर मसूर ने मैसेज किया कि वो सैलरी रेज हो गई है ना, तो मैंने कहा ये लो मेरी CV तो उन्होंने वो भेज दी। अच्छा मैं इधर आया तो इंटरेस्टिंगली GI के इन दोज डेज प्रॉब्ली नाउ एज वेल, अच्छा पाकिस्तान में एक थोड़ा सा वो है कि वो लोकल PhD हायर नहीं करते थे जनरली स्पीकिंग, ठीक है। Probably if I'm not very wrong, probably at least in computing I was the first Pakistani PhD they hired, ठीक है। उस वक्त मैं 12 साल यहाँ पे गुजार दिया, आई डोंट नो GI is regretting or not लेकिन ये है कि I was the first one who got hired, बाद में हमने लिए of course, that's pretty much it how I joined GI। एंड देन उसके बाद से आप टीचिंग कर रहे हैं। अच्छा ये देखें, अब आप तो ये सवाल पूछ रहे हैं, मुझे इससे एक बात याद आ गई, और ये मैं बात वो डॉक्टर काशिफ ज़फ़र की बात से कनेक्ट करता हूँ ना। वो काशिफ ज़फ़र ने मुझे एक दफ़ा कहा कि यार मैं एक शादी भी किया, तो कहते शादी पे मुझे एक अंकल मिले, तो अंकल कहते हैं काशिफ बेटा आप क्या करते हो ना, तो काशिफ कहते हैं सर ये अंकल ही मैं यूनिवर्सिटी में वहाँ पे पढ़ाता हूँ, तो कहते नहीं पढ़ाते तो हो, जॉब क्या करते हो ठीक है। तो वो कहते हैं यार मतलब अंकल मैं पढ़ाता हूँ ना, तो ये जॉब नहीं है, मतलब हमें ये होता है कि जॉब ये है कि आप आर्मी में कैप्टन हैं, या आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर फिजिशियन डॉक्टर, ठीक है, या डेंटिस्ट हैं, या आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, या आप लेट्स से इंजीनियर हैं, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट से बात करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को हमारा वही एक एस्पेक्ट नज़र आता है। इफ़ यू आर PhD इन एकेडमिक्स, तो हमारी जॉब के ना 3 हिस्से होते हैं। अराउंड 40% जो है ना वो टीचिंग है, अराउंड 40% जो है ना वो रिसर्च है, जिसमें हम MS PhD सुपरविजन करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं, वी ट्राई टू डू इनोवेशन, ठीक है। और फिर 20% जो है ना वो कम्युनिटी सर्विस या कमेटी वर्क, और यूनिवर्सिटी का यूजुअली हायरिंग कमेटी हो गई, करिकुलम को इम्प्रूव करने की कमेटी हो गई, सो ऑन सो फोर्थ। तो अब इसमें टू आंसर योर क्वेश्चन, तो हाँ उस वक्त से अब तक अब मेरी जॉब का जो 40% पोर्शन है दैट इज़ टीचिंग। ओके ठीक है। अच्छा तो यू टॉक्ड अबाउट रिसर्च, सो आप लाइक कोई बता सकते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में, कुछ नोटेबल प्रोजेक्ट्स के बारे में? हाँ अच्छा रिसर्च ना पाकिस्तान में क्वान्टिफाई जो होती है ना, लोग एशिया में जनरली एशिया में ना क्वान्टिफाई लोग करते हैं नंबर ऑफ जर्नल आर्टिकल्स यू हैव, ठीक है। HEC की पॉलिसीज़ हैं, आई हैव गॉट मैनी जर्नल आर्टिकल, प्रॉब्ली आई हैव गॉट 80 और सो जर्नल आर्टिकल्स, उसमें इम्पैक्ट फैक्टर नॉन इम्पैक्ट फैक्टर कैटेगराइजेशन होती है, फिर इसमें क्वालिटी की बड़ी वेरिएशन होती है, ठीक है। तो आपके आई एम सॉरी मैं आपके सवाल के लंबे लंबे जवाब दे रहा हूँ ठीक है, लेकिन ये है कि आई वांट टू एक्सप्लेन ना। तो उसमें जब ये क्वांटिफिकेशन तो है, और आप किसी से पूछें ना कि भाई आपकी रिसर्च क्या है कितनी, तो ही विल और शी विल टेल यू कि मेरे 100 रिसर्च पेपर्स, ठीक है, जिस तरह मैं वो कह रहा हूँ ना, ठीक है, आप उधर ही हो गया यार 100 रिसर्च पेपर्स के। दूसरा आएगा होगा मेरे 250 हैं, ठीक है। अच्छा मेरा क्यूमुलेटिव IF इम्पैक्ट फैक्टर जो टू डेट है ना वो 300 है, ठीक है। तो आपको खैर शायद इसका आइडिया ना हो, तो लेकिन कम्युनिटी में पीपल नो, डोमेन टू डोमेन है। फॉर एग्जांपल अगर आप इमेज प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं तो रिलेटिव इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग उसमें इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होते हैं, तो शायद ज़्यादा हो, इसी तरह बायोइन्फॉर्मेटिक्स में उनके इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें ना बहुत से एथिकल इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल रिसर्च पब्लिकेशन जब हम करते हैं, मतलब मैंने एक फॉर एग्जांपल एक मैंने एल्गोरिथम नया बनाया, बबल सॉर्ट क्विक सॉर्ट, तो आपको समझ आती होगी ना, ठीक है। इसी तरह एक डोमेन है एसोसिएशन रूल्स माइनिंग या फ्रीक्वेंट आइटम सेट माइनिंग, उसके कई एल्गोरिथम्स लोगों ने बनाए। फॉर एग्जांपल मैंने एक नया एल्गोरिथम बना लिया, ठीक है, उसको मैंने बेंचमार्क डेटा सेट लिया, उसके ऊपर मैंने एम्पेरिकल एनालिसिस भी किया, और मैंने बताया कि पिछले डेटा सेट से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। और देन आई सबमिट माई रिजल्ट्स राइट अप कंप्लीट टू अ जर्नल, ठीक है। अब जर्नल अगर टॉप फॉर एग्जांपल ACM IEEE ट्रांजेक्शन होंगी तो वो आपको रुला के रखेंगे, वो भेजेंगे एनोनमस 6-7 रिव्यूअर्स को,
वो 6-7 रिव्यूअर्स जो है ना, एक एक लव फुल स्टॉप कॉमा भी आपको देख के बताएंगे और जनरल परसेप्शन बताएंगे। उसमें 6 में अगर 3 कहते हैं रिजेक्ट, एक भी कहता है रिजेक्ट, तो पेपर गेट्स रिजेक्टेड, ठीक है। और उसमें वो रिवीजन बताते हैं, तो यू रिवाइज और इट टेक्स यूजुअली डिपेंडिंग ऑन द टास्क, तो यूजुअली इट टेक्स कपल ऑफ ईयर्स और कपल ऑफ मंथ्स टू गेट इट एक्सेप्टेड। तो एक आज मैंने रिसर्च शुरू की ना, आज फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर मैंने राइटअप लिखा, फिर मैंने पेपर सबमिट कराया, फिर वो रिवीजन रिवाइज रिजेक्ट जो भी साइकिल होता है वो होते होते एक्सेप्ट हो गया और पब्लिश हो गया। ऑन एन एवरेज इन कंप्यूटिंग दिस टेक्स 3 years, ठीक है। मैं स्टार्ट ऑफ द रिसर्च टू पब्लिकेशन। हाँ, व्हेन यू गेट मेच्योर इन रिसर्च और आपके पास चीज़ें बहुत सी पड़ी होती हैं, फिर आप ट्रेन भी हो चुके होते हैं, तो फिर आप पहली आर्टिकल इतनी अच्छी क्वालिटी का भेजते हैं कि वो ये जो 3 साल का साइकिल है, तो वो 1.5 या 2 साल या 6 महीने पे भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ना वो प्रेडेटर प्रे होते हैं ना, ठीक है, माशरे में जिस तरह होते हैं ना, वो जेब कतरे बैड गाइज होते हैं ना, ठीक है, इस तरह डाकू होते हैं, ठीक है, या वो मोबाइल छीनने वाले वॉटेवर, ठीक है। तो इस तरह ना एकेडमिक पब्लिशिंग में भी ना इसी तरह कुछ प्रेडिटरी वेन्यूज़ हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार ये जो दूसरा वेन्यू है, ये अगर 1.5 साल में इतना कर रहे हैं, मैं आपको ना 2 हफ्ते में एक्सेप्ट करके देता हूँ लिटरली। अच्छा, व्हेन यू पब्लिश तो आप रिव्यूअर भी बन जाते हैं, दूसरों के पेपर आप रिव्यू भी करना। आई रिकॉल अभी सुबह ही मैंने एक पेपर को 4 हफ्ते पहले मेरे पास रिव्यू गिरा है, मैंने उसको रिजेक्ट किया ड्यू टू पुअर क्वालिटी, ठीक है। रिजल्ट अच्छे नहीं है, राइटअप अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो चलो ठीक थी, लेकिन ये है कि ऐसे मैंने रिजेक्ट किया। अच्छा, वो जो एडिटोरियल ऑफिस है उसने अगले को रिवीजन दे दिया खुद से, ठीक है, मैंने रिजेक्ट किया। अच्छा, मुझे ना भेजो, फिर वो ऑथर्स ने रिवाइज करके दोबारा जमा कराया और दोबारा मेरे पेपर मेरे पास आ गया। भाई मैंने तो रिजेक्ट किया था, रिवाइज आपने अगर कर भी लिया, वापस मुझे क्यों भेज रहा है, मतलब यू वांट मी टू एक्सेप्ट दिस गार्बेज। खैर आई ओपन द पेपर, वो उसमें ज़रा सा भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, वो उसी तरह ही मैंने दोबारा रिजेक्ट करके उसको दोबारा, एंड आई हैव बुक मार्क दैट वेन्यू एंड आई विल सी कि ये आई एम श्योर कि वो एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि दे चार्ज द ऑथर्स, ठीक है। ठीक है। मैं किसी वेन्यू का नाम लेके ऑफेंड नहीं करना चाहता किसी का, ठीक है। तो फिर वो ऐसा होता है कि, और वो कितना चार्ज करते हैं एक आर्टिकल का, पाकिस्तानी रुपयों में बताता हूँ आपको, ऑन एन एवरेज 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी सारे, बिल्कुल ऐसे नहीं है, बहुत अच्छी रिसर्च भी हो रही है पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन चूंकि वो वेन्यूज़ हैं और फिर उसको KPI में एक्सेप्ट भी किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में या हायर एजुकेशन में ना, तो वो लोग वहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं। तो और उसके लिए जो पे आप कर रहे हैं वो किस 2 तरीके से पे होते हैं। पे किस तरह होता है, पे इस तरह होता है कि अगर आपके पास ना लेट्स से कोई मास्टर्स या PhD स्टूडेंट है जो फंसा है, उसकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है आर्टिकल, तो वो अपनी जेब से पे कर देगा, ठीक है, 3-4 लाख रुपए। और मैं उनको कहता हूँ यार ये 3-4 लाख रुपए अपने ऊपर लगा लो, ठीक है। आपकी अगर इंग्लिश राइटिंग वीक है, गेट रजिस्टर्ड इन अ कोर्स 5,000, 2,000, 3,000 में, और ये उसमें अपना स्किल ज़्यादा कर लो। मैथमेटिक्स वीक है, आप वो कर लो, ठीक है। और या फिर ऐसा होता है कि आप यू गेट अ कोलैबोरेटर फ्रॉम कोरिया और मिडिल ईस्ट, ठीक है, और उसका नाम आप वैसे लिखते हैं, उसने किया कुछ नहीं होगा, ठीक है, उसे पता भी नहीं होगा उसमें कुछ, बस उसका आप नाम लिखेंगे और वो आ गया, ये है जी 2 लाख, 3 लाख, और यू पे एंड यू गेट पब्लिश, ठीक है। अच्छा, इस सारे में हो क्या रहा है, इस सारे में ये हो रहा है, आपके सवाल का बहुत लंबा जवाब मैंने दे दिया। तो जो नुकसान हो रहा है ना, वो रिसर्च को हो रहा है। पीपल आर पब्लिशिंग at times below average work, ठीक है, they are getting benefits for that, getting degrees, और again एक चंद लोग होंगे, 20-30% होंगे, बट 20-30% इज अ बिग नंबर। तो आप फिर लोगों से पूछे ना कि भाई यार आपने 200, 300, 400 पेपर पब्लिश किए हैं, ठीक है, और तो मैंने भी किए हैं, ठीक है, बट अलहमदिल्ला आई पब्लिश्ड एट गुड वेन्यूज़। और ये किस वजह से, ये इस वजह से कि आई एम सर्विंग एट GIK, एंड यहाँ पे बड़ी कॉम्पिटिटिव किस्म की फैकल्टी है। अगर यू पब्लिश एट अ वेरी वीक वेन्यू, तो वो आपके दोस्त ही आपको कहेंगे यार ये क्या पब्लिश कर दिया, ठीक है, वो अच्छे आपके 10 नहीं है, तो ठीक है आपको उस वक्त तो चिड़ होगी, लेकिन ये है कि यू गेट गाइडेड बाय योर पीयर्स कि ऐसा नहीं करना। बट व्हेन यू आस्क देम ये छोड़ें यार, ये आपने रिसर्च क्या किया, मतलब इतने पेपर्स आपने बनाया क्या, ठीक है, तो फिर लोगों के पास जवाब नहीं होता, ठीक है, काम होते हैं। तो खैर, नाउ कमिंग बैक टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन,
we have done multiple things. For example, we have developed an assistive technology जिसमें हम ड्राइविंग बिहेवियर्स, फॉर एग्जांपल आप ड्राइव कर रहे हैं ना, तो ड्राइव करते हुए आप अच्छा ड्राइव कर रहे हैं या बुरा ड्राइव कर रहे हैं, एक्सीडेंट होना है या नहीं होना ना, वो कई वेरिएबल्स पे है, वेदर के ऊपर है, रोड कंडीशन। लेकिन हम व्हाट वी डू इज़ ड्राइवर डिपेंडेंट व्हीकल ड्राइविंग फीचर्स जो है ना, उससे वी कैन प्रिडिक्ट एन एक्सीडेंट विद एन एक्यूरेसी ऑफ अराउंड 90-95%, राइट। एक हमने ये काम किया है और दिस इज़ रेडी टू बी डिप्लॉयड इन मॉडर्न व्हीकल्स। दूसरा इसी को हमने एक्सटेंड किया है ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर का मूड आइडेंटिफाई कर, ठीक है। अच्छा, इसको कोरिलेशन किसी से कर रहे हैं, उसमें देखें अब जब मैं ड्राइवर डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करता हूँ ना, इफ़ यू आर वेरी गुड ड्राइवर लेकिन आपका मूड अच्छा नहीं है, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, ठीक है, कोई पेपर की टेंशन है या कोई फैमिली इशू है या कोई हेल्थ इशू है ना, तो फिर आपका वो ड्राइविंग पे फोकस ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ड्राइवर का मूड, एक तो स्ट्रेस जो है वो बाइनरी वेरिएबल है, स्ट्रेस है या नहीं है, चलो उसकी रेंज होगी लेकिन अगेन इट्स बाइनरी वेरिएबल। लेकिन मूड जो है ना, उसमें आपके 6 क्लासेस आ जाती हैं, हैप्पी, सैड, सरप्राइज, नेगेटिव सरप्राइज, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो वो भी हमने वी हैव डन दैट, वो हमने यूजिंग ड्राइवर डिपेंडेंट व्हीकल ड्राइविंग फीचर से भी किया, और यूजिंग EEG सिग्नल्स, वो उसमें हमारे पास ब्रेन कैप है, उससे हम करते हैं। और वो भी रिसेंटली व्हाट वी आर डूइंग इज़, एक चीज़ मेरे जहन में थी और टीम इज वर्किंग ऑन दैट, डेटा सारा कलेक्ट हो गया, मैंने उसे निकालने रिजल्ट्स, वो भी हमने थोड़ी ड्राइविंग से ही ना निकाल लिया, और भी बहुत से हैं लेकिन ये मैं आपको चंद बता रहा हूँ मिसाल के तौर पे। अच्छा, हाइपोथेसिस इसके पीछे क्या था, हाइपोथेसिस इसके पीछे क्या था, एक फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल है ये, मैं एग्जांपल इसलिए देता हूँ, ये फिर लोग उसे कनेक्ट कर पाते हैं। आप किधर जाते हैं रिश्ते के लिए, ठीक है, तो हमाद के रिश्ते के लिए जाते हैं, तो हमाद को भी साथ अब्बा जी साथ ले जाते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो उधर पूछेंगे हमाद आप सिगरेट पीते हो, हमाद कहेगा नहीं, भले वो पीता हो, ठीक है, वो पागल है, वो बताएगा मैं फिर आपको गुस्सा तो नहीं आता जल्दी, हमाद रोज़ाना जो है ना वो गुस्से में घर के दरवाजे तोड़ देता है, लेकिन उधर ही विल बी अ गुड गाय, ठीक है। और अब आपके रिश्ते की बात है, आपके सब दुनिया के सबसे अच्छे बंदे बने, ठीक है। एंड आई वॉज लाइक कि ये ना आपने ना, अगर किसी बंदे को देखना है ना उसकी पर्सनैलिटी, ये मेरा हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस ही कहेंगे, हाँ यस हाइपोथेसिस। तो आप उस बंदे को दें गाड़ी की चाबी और उसे कहीं राजा बाज़ार में जाते हैं, वहाँ से 1 किलो जो है ना वो, सॉरी 1 किलो कह रहा हूँ, 1 दर्जन केले लाने हैं वैसे ना, तो वो जहाँ भी जाएंगे आप कुछ करेंगे, तो वो ड्राइविंग के दौरान तो लोग, तो आप पाकिस्तानी ट्रैफिक में तो कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, पीछे से आपको लाइटिंग दे रहे हैं, ठीक है, तो उधर आपकी पेशेंस का पता चल जाएगा, ठीक है। फिर उधर आप खुद किस तरह ड्राइव करते हैं, फिर आप खुद गाड़ी किस तरह पार्क करते हैं, ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, ये हम देखना चाह रहे हैं कि इस सारे वेरिएबल्स हम लें और फिर उससे ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है ना वो प्रिडिक्ट करें। अच्छा, ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है ना, इसके कई मॉडल्स हैं, उनमें से एक जो पॉपुलर मॉडल है दैट इज़ अ बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल। वो कहते हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी में 5 ट्रेट्स होते हैं: ओपननेस, कॉन्साशियसनेस, OCE एक्स्ट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, और OCEAN, और एग्रीगेबलनेस, राइट। और ये हर एक फैक्टर जो है ना आप किसी स्केल में होते हैं, ठीक है, हर एक फैक्टर आपका हाई, फॉर एग्जांपल आप मेरी हर बात में हाँ हाँ कर रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, तो आपकी एग्रीगेबलनेस ज़्यादा है। लेकिन आप मेरी हर बात में कहते हैं नहीं, मैं वो यार आज लंच जो है ना फॉर एग्जांपल फलाने रेस्टोरेंट पे कहते हैं, आप कहते हैं नहीं, मैं कहता हूँ यार पानी तो पीना चाहिए अभी, आप कहते हैं नहीं, ठीक है, हर बात है, तो आपकी एग्रीगेबलनेस के नो है। तो इसके पर्सनालिटी टेस्ट भी होते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग कि हमने ड्राइविंग का डेटा ले लिया, लोगों का पैटर्न सारे कलेक्ट कर दिया, अभी तक हमने अराउंड 195 का डेटा कलेक्ट कर दिया, और उन्हीं लोगों का ना हमने पर्सनालिटी टेस्ट भी ले लिया, जो कि IPAP न्यू 120 टेस्ट है, उससे आ जाती है पर्सनैलिटी। और अब हम करेंगे ये हमारे पास क्लास लेवल आ गया, अब हम करेंगे उस डेटा से इस पर्सनैलिटी को प्रेडिक्ट करेंगे, और फिर कोई अननोन बंदा आएगा तो उसकी पर्सनैलिटी। ऐसे इसकी यूटिलिटी बड़ी होती है। एक होता है हॉटसन इफेक्ट, ऐसे मुझे चीज़ें भूल जाती हैं, प्रॉब्लम मैं ठीक ही कर रहा हूँ। हॉटसन इफेक्ट ये होता है, अगर ये होता है तो वो ये होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को फेक करते हैं, जिस तरह मैंने वो रिश्ते की एग्जांपल दी ना, ठीक है। तो वो तो उसमें ये है कि आपको पता है आपकी पर्सनैलिटी वैल्यूएट हो रही है, तो मतलब यू आर गोइंग टू बी अ गुड गाय और मे बी अ बैड गाय, वॉट एवर यू वांट टू शो योरसेल्फ। तो इसमें ये है कि यू गिव अ
डिफरेंट टास्क टू एन इंडिविजुअल जिसका पर्सनैलिटी असेसमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वहाँ से आपके पास वेरिएबल्स आ जाएंगे जिससे आप पर्सनैलिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये हमने बाय द वे हमने ना ड्राइविंग के अलावा गेम्स से किया है एंड वी ऑब्टेन एन एक्यूरेसी ऑफ 97%, जिसमें हमने कंप्यूटर गेम्स, अच्छा कंप्यूटर गेम्स हैं टिक टैक टो, ये गेम्स से नहीं, जो रियल वर्ल्ड स्ट्रेटेजी गेम्स होते हैं वॉरक्राफ्ट, उस वो हमने खेली हैं, यानी कि पार्टिसिपेंट से खिलवाई हैं, उनका पर्सनैलिटी टेस्ट पहले से लिया हुआ था और उस डेटा से हमने अराउंड एक्यूरेसी ऑफ 97% जो है ना वो अचीव किया। लेकिन इस सारे में अभी ये तो हमने थ्योरेटिकल रिसर्च किए हैं, इसका आउटपुट भी है, सॉफ्टवेयर भी हमारे पास पड़े हैं। Commercializing this remains a task yet to be achieved. So we are on it. So let's hope within the next 5-6 years we are able to commercialize and create products. Very good, very good. Alright, so this was a research, right? So मुझे पूछना है कि आपने इतना साल यहाँ पे जीकी में इतना स्पेंड किया, around 11 years I think, right? 12 years. गिन लो रोजाना। So 12 यानी कि अगस्त। how has your experience been? मतलब आपको कुछ notable चीज़ें पता चली हो, कुछ learning वगैरह? आपको अच्छा कोई अच्छा करना? एक बात बताऊँ, दिस इज नॉट GK, इट्स GIK। GIK, ठीक है। okay. अच्छा ये हमने ना GK ने खुद ना इसको GK और GIK, तो एक वो यानी कि इसकी वो एक ब्रांड नेम थोड़ा ना वो हो गया, और आई यूज टू करेक्ट, लेकिन अब मैं अब छोड़ गया हूँ क्योंकि GK GIK दोनों मिक्स ही जाता है। ठीक है, एनीवेज चल, यू कॉल इट GK, आई कॉल इट GIK। ठीक है, देखें मैंने आई जॉइन GIK अगस्त 2011। ठीक है, उन दिनों ना फैकल्टी स्टेबिलिटी कम थी, यानी कि ऑन एन एवरेज एक फैकल्टी मेंबर जो है वो साल 2 साल 3 साल इससे ज़्यादा नहीं गुजारता था यहाँ पे कंप्यूटिंग स्पेशली ड्यू टू वेरियस रीजंस। ठीक है, जनरली बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी ऐसा ही था, ऐसा नहीं है, लेकिन GIK वो सॉर्ट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास रिमोट। ठीक है, लेकिन अब and I along with my many colleagues, at least 5, 6, 7 who joined with me are still here since the past like 10, 11, 12 years। ठीक है, तो उसकी कई वजूहत हैं। एक तो पहली वजह ये है कि अब GIK इज़ नो मोर रिमोट। ठीक है, फैकल्टी मेंबर जब यहाँ आते हैं ना, तो पहले ये इशू था कि हॉस्पिटल कोई मेडिकल इश्यूज हो जाएं, तो अब लोकल वेसिनिटी में हमारे पास करीब CMH है एंड स्टाफ। स्कूलिंग का बच्चों का इशू था, कैंपस में अगर पसंद नहीं आती, कैंपस पे स्कूलिंग है लेकिन अगर लेट्स से किसी को पसंद नहीं आती वो नॉट्स वैरायटी, तो आसपास नहीं थी, लेकिन अब आसपास विद इन 15 minutes ड्राइव वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस विद इन कैंपस एज वेल, विच इज़ नाउ क्वाइट इम्प्रूव्ड, लेकिन बाहर भी है। तो और फिर इस्लामाबाद इज़ जस्ट 1 hour 30 minutes ड्राइव, प्रॉब्ली एवरी वीकेंड। टुमारो मॉर्निंग आई एम ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद। ठीक है, तो वो भी दैट इज़ नो मोर एन इशू नाउ, क्योंकि कम्यूटिंग रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया। लेकिन ये तो डिफरेंट बात है, लेकिन GIK वैसे ना ये बहुत ना एडिक्टिव है। ठीक है, इतना फॉर एग्जांपल इट्स जस्ट लाइक कंटोनमेंट रादर बेटर देन अ कंटोनमेंट। ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल इफ़ यू लिव हियर यू गेट हाउस एट कैंपस। ठीक है, आपको कोई मेंटेनेंस घर के इश्यूज़ हो, कोई नलके का इशू है, लाइट का इशू, जस्ट कॉल द कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट, they instantly come. If not within that hour, next day they can come and fix the issue. Security alhamdulillah remains no issue. अब मैं to give you an example, अक्सर जो है ना मेरे बच्चे कैंपस पे साइकिलिंग करते करते ना पता नहीं किधर छोड़ आते हैं साइकिल, तो मुझे फिर घर से फ़ोन आता है कि आते हुए ना पार्क में फलानी जगह पे साइकिल पड़ी, वो भी साथ लेते हैं ना। ठीक है, यू कैन नॉट डू इट इन एनीवेयर इन रेस्ट ऑफ द कंट्री, मे बी DHA और बैरियर टाउन, और मे बी आई डोंट नो, लेकिन शायद वहाँ पे आप ये कर पाएँ। तो फिर जो आपकी फैमिलीज़ यहाँ पे होती हैं वो बड़ी कोजी किस्म की इन्वायरमेंट में होती हैं। अच्छा, ऑफिस टू अब ये वी आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट, हमने रोज़े अफ्तारी की हैं। ठीक है, इस टाइम क्या बज रहे हैं, 10:40 हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज़ GIK। आप रात के 3 बजे तक भी इधर बैठे रहें मेरे साथ ऑफिस में ना, ठीक है, तो आप बैठ सकते हैं। ये जो इन्वायरमेंट है ना GIK की 24/7 वर्किंग इन्वायरमेंट। आई रिकॉल एक दफ़ा अच्छा आप तो स्टूडेंट्स आप तो चले जाते हैं, मेरी अक्सर ईद कैंपस भी होती हैं, ईद की नमाज कैंपस भी होती है। ठीक है, और ठीक है आफ्टर दैट वी ट्रैवल एंड स्टफ। तो GIK जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ना ऑन कैंपस विद
with what, with the comfort zone of for your family and your for you as well, for your teaching and research. ये शायद ही कोई हो पाकिस्तान में कोई दूसरा. पीपल हैव ट्राई टू मिमिक, मैं नाम नहीं लेना चाहता इंस्टीट्यूट्स का, लेकिन प्रॉब्ली चलो नाम नहीं लेते, तो एक आध ने मिमिक करने की कोशिश की है. दे कैन नॉट. उसकी वजह ये है कि दिस इज़ 100% रेजिडेंशियल. एक सैनिटरी वर्कर से लेके, एक माली से लेके, एक लैब इंजीनियर से लेके, प्रोफेसर से लेके रेक्टर तक, दे ऑल लिव ऑन कैंपस. ठीक है. और कोई दूसरा मिमिक करे तो उसमें आधे लोग कैंपस पे नहीं रहते, आधे रहते हैं. इफ़ यू मीटिंग टू कॉल, तो हमें याद है हमने रोज़ों में कभी कभी रिकॉल एक एग्ज़ाम था, वो सहरी से पहले एग्ज़ाम लिया था. वो बच्चों को सहरी मैंने स्पॉन्सर की थी अल्टीमेटली. ठीक है. तो यू कैन नॉट डू दिस एंड द सेम गोज़ फॉर यू एज वेल, जो आप सोसाइटीज़, स्टूडेंट सोसाइटीज़ के काम होते हैं ना. तो एंड ऑन टॉप ऑफ दैट GIK इज़ अ गुड एम्प्लॉयर, सैलरी एंड पर्क्स एंड बेनिफिट्स, तो एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री इट्स गुड. तो है. हाँ ये है कि इफ़ यू हैव नॉट बीन टू GIK बिफोर, मतलब एज अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई, ठीक है, फिर आपके जहन में होते हैं, आपको लोग कहेंगे यार ये रिमोट है. अच्छा, वो लोग कौन होंगे? वो लोग होंगे, नो ऑफेंस टू एनीवन, ठीक है, वो लोग होंगे जिन्होंने पुराने ज़माने में GIK में टाइम गुजारा और उन्होंने GIK में 1 या 2 साल गुजारे, ठीक है, या लेट्स से 3 साल गुजारे. ठीक है. और ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सीनियर पोजीशंस पे हैं. ठीक है. लेकिन उन्होंने 2 साल, 3 साल, 4 साल गुजारे हैं GIK में. ठीक है. तो और वो यहाँ से चले गए. अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड एनीबडी, लेकिन ये है कि अगर वो यहाँ पे रहते हमारी तरह 12 साल गुजारते या 13 या 14 साल गुजारते, तो जिन इश्यूज़ की वजह से उन्होंने छोड़ा था, तो उन इश्यूज़ के हमने अभी सोल्यूशन निकाले ना, इंस्टीट्यूट को हमने दिए, इंस्टीट्यूट ने हमारे सोल्यूशन एक्सेप्ट किए हैं और उन्होंने वो रेमेडियल एक्शन लिए हैं और इंस्टीट्यूट हैज़ ग्रोन अलॉट. तो लेकिन वो लोग तो 15 साल पहले के GIK के इश्यूज़, तो कोई भी एक नया सेटअप बने, जो इश्यूज़ आई रिकॉल टेक्नोलॉजिक्स जब नया इस्लामाबाद कैंपस, इस्लामाबाद ऑफिस उनका बना, तो वो इनिशियली एक हॉल था. ठीक है. एक हॉल था, 2 टेबलें लगी हुई थी. ठीक है. हम वो तो गए, मैं और मेरे साथ दोस्त था सनी सनाउल्लाह उसका नाम है, अभी वो दुबई में किधर होता है. तो हम कहते हैं यार टेक्नोलॉजी का तुमने लाहौर का ऑफिस दिखाया था, भेजा मेरे हॉल में सिर्फ तपे हुए हैं. तो सलमान किवान, हमने वो मैनेजर आशल को हमने कहा यार ये आशल भाई ये कहते नहीं है कुछ नहीं. तो हम थे थोड़े स्ट्रेस में थे, सैलरी तो ठीक है लेकिन ऑफिस तो कोई हो ना. तो किवान एक दिन आया इस्लामाबाद ऑफिस, तो हॉल खाली था. किवान कहता वाह व्हाट लेविश ऑफिस, खाली हॉल है भाई, हमें वैसे ही होता ना खुश करने के लिए. लेकिन अगेन वो विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स वो सारा, क्योंकि वो सेटअप बनाना है, फिर उसमें एक्सचेंज भी लग गया, केबल्स भी बन गए, और विद इन कपल ऑफ मंथ्स वो ऑफिस ठीक ठाक हो गया. लेकिन वो जो इनिशियल एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने उसको बनाया. तो इसी तरह GIK जो है ना, इसकी जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, 24/7 टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट है ना, दिस इज़ वेरी एडिक्टिव. ठीक है. आप जब यहाँ से छोड़ के जाएंगे, दिस विल बी वेरी नॉस्टैल्जिक एज वेल. ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट मेक्स अ लॉट ऑफ अस लिव हियर फॉर लॉन्ग. इश्यूज़ भी हैं ठीक है, लेकिन वो इश्यूज़ ऐसे हैं वो कि हर जगह होते हैं. अच्छा, so we know कि you have been dean for कितने अर्से के लिए आप डीन थे FCSE के? मैं आई बीन डीन ट्वाइस. अच्छा, twice. So what were some of the changes that you brought इधर FCSE में during your deanship? अच्छा, पहली दफ़ा जब मैं डीन बना ना, जी. दैट वाज लाइक आई थिंक 2013 और 14. बड़ा यंग था मैं अभी भी यंग हूँ. ठीक है. तो वो बहरहाल वो दैट वाज एक्टिंग चार्ज, क्योंकि वो आई वाज एन असिस्टेंट प्रोफेसर दैट टाइम, तो दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू डीन, लेकिन इट वाज टेकिंग टाइम. तो फिर मुझे कुर्बानी दे के आगे बढ़ना पड़ा. ऐसा नहीं था बहरहाल मुझे बना दिया इन्होंने, मैं बन गया. ठीक है. तो और एट द टाइम आई वाज वेरी एनर्जेटिक. या मुझे वो होता है ना, बंदे को होता है टेम्परेरी कोई मिला ना चार्ज, तो होता है कि मैं अब कुछ करके दिखाऊँ, एक वो भी होता है, फिर एज के साथ भी होता है. तो एट दैट टाइम माई फोकस वॉज लैब्स. ठीक है. एंड आई स्टिल बिलीव कंप्यूटिंग जो ह्यूमन लर्निंग होती है ना, वो 3 डोमेन्स में होती है. कॉग्निटिव, जिसका याद करने से ताल्लुक है. ठीक है. दूसरी होती है साइकोमोटर, जिसका इम्प्लीमेंटेशन से ताल्लुक है. तीसरी इफेक्टिव है, जिसका ताल्लुक इमोशंस बिहेवियर से है.
एंड आई बिलीव कि कंप्यूटिंग के अंदर CS के अंदर आपकी साइकोमोटर डोमेन में ना ज़्यादा होनी चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। आपको मैं लाख बताता रहूँ, फॉर लूप है, वाइल लूप है, स्विच है, ठीक है, कहानियाँ बताता रहूँ पेपर, जब तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया वो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं आना, ठीक है। तो आई वर्क ऑन लॉट ऑन improving the lab, infrastructure of the lab and creating manuals. अच्छा ये manuals कंप्यूटिंग में ना वैसे एक बात बताऊँ, ये है थोड़ा सा ना एक ट्रिकी एरिया, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैकेनिकल के हम मैनुअल बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की या सिविल की लैब्स के मैनुअल बनाते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वही होता है, वो जनरली 10 साल तक, 8-9 साल तक वो सेम ही रहता है। कंप्यूटिंग में मुसीबत ये ना कि आपने मैनुअल बना लिया, 6 महीने बाद चीज़ चेंज हो जाती है। तो जब दूसरा लैब इंजीनियर आता है ना, तो वो तो आके देखता है मैनुअल, तो वो मैनुअल तो सनसिफर का होता है ठीक है। तो है ट्रिकी एरिया, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि चलो एक आउटलाइन मिल जाती है जो इंस्ट्रक्टर है उसको करने के लिए ना। तो दैट वाज द एरिया ऑन विच आई वर्कड। लेकिन उसके बाद फिर व्हेन आई गॉट अ कंप्लीट टेन्योर एज डीन इन 2018, तो उस वक्त तक हमारे पास 2 ही डिग्री प्रोग्राम्स थे, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। So I came up with the idea to start BS in artificial intelligence. Although फिर वो मेरे टेन्योर के बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन ये है कि आई कॉल माई सेल्फ पायनियर ऑफ दैट। उसके बाद फिर हमने कई प्रोग्राम स्टार्ट किए, और AI फिर हमने हवावे के साथ पार्टनरशिप है, उसमें हवावे हमारी कुछ लैब्स जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है। सो दैट इज़ प्रीटी मच इट। लेकिन ये जो है ना एकेडमिक्स में एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये आपको एज एन एम्प्लॉई, मतलब मैं खुद, और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट के, यार ये हमारा डीन है, या हम यहाँ पे डीन कहते हैं, दूसरी जगह में HOD या प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड स्टफ ना। तो वो सारे मसले जो कि उसकी तरफ आपकी शॉर्टेज, अटेंडेंस शॉर्टेज का मसला हो, कोर्स रजिस्ट्रेशन का मसला हो, तो आपको लगता है कि यार ये बंदा पावरफुल है, ऐसे ही है। लेकिन मेरी अब क्योंकि मैंने टेन्योर गुजार लिया है, उसके बाद जब मैं एक आम शहरी के तौर पर अपने आप को देखता हूँ ना, तो वो टेन्योर जो है ना वो सबसे अनप्रोडक्टिव किस्म का होता है, ठीक है। यानी कि आप मैनेजरियल इश्यूज़ और कॉन्फ्लिक्ट्स, सबसे मुश्किल काम ना, सबसे मुश्किल मैनेजमेंट जो होती है ना, वो आप कहना मैं डेटा मेरे पास आ गया कॉम्प्लेक्स किस्म का टेलिको का, उसके लिए मैं स्क्रिप्ट लिखना, उससे इन्फॉर्मेशन निकालनी है, मुश्किल काम है। नहीं, ह्यूमन बींग्स को डील करना सबसे मुश्किल काम है। एक कहेगा मुझे कंप्यूटर दे दो, दूसरा कहेगा नहीं इसको ना दो, मतलब उसको नहीं चाहिए होगा लेकिन उसको ना दो, ठीक है। और कोई स्टूडेंट कहेगा जी मैंने जी 45 लेक्चर्स में से जो है ना 30 लेक्चर्स मिस कर दिए, लेकिन मुझे आप फाइनल एग्जाम देने दें, ठीक है। वो फिर कोई पता नहीं है। तो दैट इज़ क्वाइट अ ट्रिकी एरिया जहाँ पे ह्यूमन बींग्स को अपने वो करना है। तो उसमें ये है कि आपकी जो प्रोडक्शन है, परफॉर्मेंस एज अ टीचर, एज अ रिसर्चर, वो गेट सफर्ड। दूसरा, व्हेन यू सी अराउंड, थोड़ी आंख खोलें और दुनिया में देखें, एंड्रयू एनजी मशीन लर्निंग, ठीक है, या पाकिस्तान में देखें अच्छे कंप्यूटर साइंटिस्ट, आपको कौन से आपके जहन में आते हैं? मैं नहीं आता ठीक है, चलिए अच्छे कंप्यूटर साइंटिस्ट में फॉर एग्जांपल डॉक्टर उमर सैफ आते हैं ना, ठीक है। मैंने डॉक्टर उमर सैफ की एडवर्टीजमेंट भी कर दी इसमें, ठीक है, बट ही इज़ अ नेम ना, ठीक है। और मैं डॉक्टर फैसल शाफी, ये मेरे शाफी जो है शफायत है, शाफी डॉक्टर नस्ट में होते हैं, ही इज़ अ गुड कंप्यूटर साइंटिस्ट। मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई उनसे। लेकिन आप लोगों में काम देखें ना, और कोई आता है जहन में? मैं फिर भी नहीं आया ठीक है। तो मतलब ये अच्छा, अब ये मैं बताऊँ, ये और कहीं है, तो मैं आपको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बताएं, लेकिन जनरली ना किसी भी कंप्यूटर साइंटिस्ट को आप इस वजह से नहीं जानेंगे कि वो डीन या HOD या रेक्टर या प्रो वाइस चांसलर। आप किस वजह से जानते हैं कि उसने क्या रिसर्च की है, उसने क्या टीचिंग की है। मैं टू गिव एन एग्जांपल, डॉक्टर फिदा साहब ने पढ़ा है, सुना है, बिल्कुल पढ़ा है, पता नहीं, लेकिन सुना है ना, सुना ठीक है। था। क्या सुना है, कैसे कैसे टीचर है, वो बहुत अच्छी टीचर है, बहुत लेकिन आउटस्टैंडिंग टीचर है, ठीक है। तो वही आपको पता है, वो ही वाज, मतलब मैंने उनके एक तकरीबन एक साथ टेन्योर अपना एक गुजारा था, जिसमें ही वाज डीन ऑफ मटेरियल्स इंजीनियरिंग, ठीक है। बट ही आपको नहीं पता था शायद कि वो डीन रहे हैं कभी, ठीक है। तो यानी कि nobody is known for their deanship or rectorship or chairmanship and stuff. People get remembered or recalled by the work they do, ठीक है। तो ये हमारे जो है ना, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दैट फेज ना, तो हर एकेडमिशियन जो है ना उसको होता है कि चलो यार अगर मैनेजरियल पोस्ट है तो यार कभी मैं डीन या HOD या चेयरमैन बन जाऊँ,
तो ठीक, विच इज़ फाइन, आपका करियर गोल्स होने चाहिए, लेकिन ये है कि यू कैन सर्व अ लॉट बेटर when you are a faculty member by doing good teaching and by doing good research, और फिर आपको ज़्यादा लोग उससे रिमेंबर करेंगे। तो खैर एनीवेज, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो आपके सवाल के जवाब है उसमें माई फोकस हैज़ ऑलवेज बीन ऑन लैब्स एंड देयर एग्जीक्यूशन, क्योंकि लैब्स जो है ना हर जगह कंप्यूटिंग में, इट्स नॉट जस्ट वन इंस्टीट्यूट, कई इंस्टीट्यूट्स में आपने सबसे वीक एरिया देखना हो ना, दो चीज़ें देख लें। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएँ, देखें उनकी लैब्स कैसे होती हैं, मतलब लैब हैं कैसी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या और कंडक्ट कैसी होती हैं। आप यू विल फाइंड, कंप्यूटिंग की बात करूँ, सबसे वीक एरिया वो। दूसरा, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएँ, उनकी FYP रिपोर्ट्स देख लें, आपको पता चल जाएगा यार मतलब इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, अच्छा, ये मैं आई एम अ प्रोग्राम इवैल्यूएटर ऑफ कंप्यूटिंग काउंसिल, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ एक्सटेंशन विजिट्स के, तो आइडिया हो जाता है कि कौन सी वेरिएबल को छेड़ना है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या इशूज़ हैं। और उसकी वजह कंप्यूटिंग में इशू ये है कि जनरली जो बिलो एवरेज बच्चा भी होता है ना, बिलो एवरेज, उसको भी बड़ी सी जॉब मिल जाती है। तो आपको एज ए लैब इंजीनियर जो है ना, ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कहता कि भी सारे वीक होंगे, लेकिन जनरली यू सफ़र टू हायर टॉप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स एज लैब इंजीनियर एज़ कम्पेयर्ड। आप आई नो, हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वी हैव लैब इंजीनियर्स, और most of the time they are gold medalists or some toppers of their class, as compared in computing हमें generally नहीं मिलते। उसकी वजह यह है कि वो बिलो एवरेज बच्चा जो है ना, उसको भी इंडस्ट्री ले जाती है। तो हमारे पास कैसे लोग बचते हैं, ऐसे लोग बचते हैं जिनके गोल्स डिफरेंट होते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कहना चाह रहा कि वो वीक होते हैं, ठीक है, उनके गोल्स क्या होते हैं, वो कहते हैं यार इधर एकेडमिक्स में आ जाएंगे, अपनी 1-2 लैब्स कराएंगे और साथ अपने GRE देंगे, ठीक है, या कोई CSS की तैयारी कर रहा है, या कोई अपनी ऑनलाइन कोई जॉब शॉप एंड स्टफ कर रहा है ना, तो वो है, तो वो फिर ज़्यादा फोकस अपनी इस काम पे नहीं करते, तो दैट ऑलवेज रिमेन एन इशू। तो इसको आप फिर प्रोसेसेस से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यू गेट अ सब ऑप्टिमल, अब सब ऑप्टिमल इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, लेकिन ये है कि गेट अ सब ऑप्टिमल रिसोर्स टू कंडक्ट अ लैब, लेकिन आपका मैनुअल, आपकी KPIs टू एसेस के इसने कितनी लैब्स करा ली हैं, उसमें क्या असेसमेंट की है, वो ऐसी हो कि आपको एक वीक या एक अनमोटिवेटेड बंदा भी मिल जाए ना, लेकिन वो डिलीवर ठीक हो जाती है। अच्छा, सो अच्छा, तो अभी जैसे आपने बात की कि यू आर द पायनियर ऑफ AI डिग्री, बैचलर्स इन AI और आई एम वन ऑफ दी, बिकॉज देयर आर मैनी। अच्छा, तो मैं इस तरह कर जी, लेना, मैं वो AI का इलामा इकबाल हूँ, ठीक ठीक है, तो कायदा तो उसका कोई और है, कायदा तो मोहम्मद अली उसका कोई और है, ठीक है। अच्छा, तो इनके बारे में देयर इज दिस ओपिनियन अबाउट ओपिनियन कि बैचलर्स के लेवल में ठीक है, इतनी ज़्यादा वो एग्रीड। फोकस्ड नहीं होनी चाहिए ठीक, किसी एक चीज़ पे। तो आप ये मेरे ख्यालात जानना चाह रहे हैं इस पर। जी, गुड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, देखें, देयर आर जनरली टू स्कूल ऑफ थॉट्स। एक स्कूल ऑफ थॉट है अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, और एक है ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट, इफ़ आई कैन क्लासीफाई इट दिस वे, बट देयर आर अदर स्कूल ऑफ थॉट्स एज वेल। जो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट है ना, वो कहते हैं कि यार एक ही डिग्री हो, ठीक है, जनरल डिग्री हो, BS कंप्यूटर साइंस, और फिर स्पेशलाइजेशन आप उसमें करते हैं। जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़, वो हर एक एरिया में स्पेशलाइज है। वहाँ पे गेमिंग में भी BS की डिग्री है, मल्टीमीडिया में अलग से BS की, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की अलग से डिग्री है, डेटा साइंस और डेटा माइनिंग एंड सो ऑन ऑफ, हर एक की अपनी। तो ये दोनों हम when we came up with this idea, and probably another university also initiated this idea, so we took this proposal to the computing council ने फिर एक लार्जर फोरम बनाया और कि करिकुलम बनाया, BS AI का, साइबर सिक्योरिटी का, डेटा साइंस का। उधर ये कई दफ़ा बहस हुई, जिन लोगों ने US PhD की थी ना, वो तो कहते थे ये होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ये सब बड़े स्ट्रॉन्ग उनका ओपिनियन था। जिनका ब्रिटिश PhD थी या उस तरफ इंक्लिनेशन था, यानी कि उनके प्रोफेसर्स या उनके इंटरेक्शन वहाँ थी, दे वर लाइक ये ऐसा होना चाहिए। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बोथ आर वाइबल सॉल्यूशंस। Primarily all of them, BS people admitted in BS computer science, people admitted in BS AI और data science, all of them। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ना 3-4 कोर्सेज जो है ना, वो आपको अच्छे आने चाहिए,
कंप्यूटिंग में। पहला प्रोग्रामिंग है जिसमें CS 101 और 102 आ जाते हैं। किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में करें तो वो उसको ITC और ऊप कहते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग आपको अच्छी आनी चाहिए। दूसरा, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छी आनी चाहिए, बहुत अच्छी आनी चाहिए। तीसरा, आपको डेटा बेसिस, ठीक है, वो आपको अच्छी आनी चाहिए। एक चौथे में जैन से निकला है प्रॉब्लम दैट वाज ऑपरेटिंग सिस्टम और व्हाट, ये 4। और इसके अलावा और भी हैं। तो इन तमाम में BS CS BS AI कोर तो सेम है, ठीक है। सिर्फ ये है कि जो BS कंप्यूटर साइंस में AI यू गेट टू रीड दैट एज एन इलेक्टिव और मे बी इमेज प्रोसेसिंग, तो वहाँ पे वो क्या बन गया, वहाँ पे कोर बन गया, ठीक है। तो कोर चूँकि सेम ही है तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो मैं कोई एग्जांपल और देता हूँ। Argicans have served in Microsoft and Google, ठीक है। I am not recalling the name. There was Jiken who was country manager Microsoft. लेकिन वो जितने भी थे ना, वो जितने भी थे जो कंट्री मैनेजर माइक्रोसॉफ्ट रहे हैं, ठीक है, या बहुत से ऐसे हैं जो गूगल के हैं, मैंने जिनकी डिग्रीज देखी ना, उन्होंने GIK से BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है या BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, ठीक है। दे एंडेड अप लैंडिंग। मैं सलमान काजी का नाम ले लेता हूँ। नाउ ही इज़ लेफ्ट गूगल, वो अपना स्टार्टअप है, कोई और स्टार्टअप है, जॉइंट दैट। सलमान काजी, मैं सही नाम ले रहा हूँ, हाँ। सलमान काजी इज़, यू नो, उसने कौन सी डिग्री की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। तो डज इट मैटर स्किल सेट। अब GIK देखें, GIK में एक बहुत बड़ी चीज़, मैं वैसे भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, GIK में आपको पता नहीं है, आपके साथ एक बहुत चीज़ होती है जो हो जाती है, आपको पता नहीं चलता। वो ये है कि आपका फर्स्ट ईयर कॉमन है, आप, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ठीक है। आप मटेरियल्स की लैब भी करते हैं। हमारे कंप्यूटिंग के ग्रेजुएट दरमियान में कोई डिसकंटिन्यू हुआ था फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, नाउ वी आर बैक, कि हमने फर्स्ट ईयर कॉमन किया, जिसमें वो कहते हैं हम यार सर ये हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैब में वो रेक माल उठाया हुआ है और वो ड्रिल मशीन के साथ काम कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, हम तो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अभी दिस ईयर जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पहले फर्स्ट ईयर कॉमन नहीं था, अब उनके लिए भी कर दिया। उससे फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा ये है कि यू गेट टू नो अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन द फर्स्ट ईयर एज वेल, एंड दोज मैकेनिकल इंजीनियर्स गेट टू नो अबाउट कंप्यूटिंग एज वेल, ठीक है। और उसके बाद फिर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अपने अपने प्रोग्राम में आप जाते हैं, तो बाद में आपका करियर जिस तरह बनता है, तो दैट डज नॉट मैटर, ठीक है। एंड यू देखें, जो बिल गेट्स को जानते हैं, ठीक है, और उसने कहाँ से पढ़ा, ही इज़ ए यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट, ठीक है। उसके टीचर ने, जो मैंने पढ़ा है, आई डोंट नो कितना सच है, उसके टीचर ने सिखाया था तुम ज़िंदगी में ट्रक ड्राइवर के अलावा कुछ नहीं बन सकते। हालांकि ट्रक ड्राइवर में कोई बुरी बात नहीं है, लोग ट्रक ड्राइवरी में बहुत कमा रहे हैं, लेकिन बहरहाल उसने ज़्यादा कमा लिया, लेकिन ही एंडेड अप हैविंग हिज बिलियन डॉलर कंपनी, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली, तो अब आप ये भी बताएं कि अब एक बच्चा है ही रजिस्टर्ड BS AI में, या है ही रजिस्टर्ड BS डेटा साइंस में, ठीक है, तो कैन ही गो रॉन्ग, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाला है। तो दैट, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट में जो है ना, वो करिकुलम और टीचर्स के अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या, आपके पीयर्स, ठीक है। अगर आपका बैच अच्छा आ गया, ठीक है, बहुत टॉप प्रायोरिटी, मतलब यानी कि सारे जो फर्स्ट प्रायोरिटी जिनकी थी वो BS AI थी या BS डेटा साइंस या मैकेनिकल थी ना, तो आपका बैच अच्छा आ गया, ठीक है। और आप याद रखिएगा, आप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम योर पीयर्स एज कम्पेयर टू योर टीचर्स एंड बुक्स, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट GIK एंड कपल ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स आर प्रोवाइडिंग इन पाकिस्तान। इतनी अच्छी लॉट आ जाती है ना उनके पास, ठीक है, तो बच्चे जो है ना, दे डोंट गेट रॉन्ग। तो इसलिए वो जो ये है ना कि मिथ कि भाई ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू, वन शुड रिस्पेक्ट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। लेकिन ये है कि यू विल सी दे विल डू मिरेकल्स। अब दूसरा तीसरा साल है GIK में, अमंग टॉप 3 प्रायोरिटीज़ एडमिशन के लिए AI या CS ही होती है, तो ठीक है। बाद जो में इसकी डिमांड कम होती है एट टाइम्स, लेकिन ये वी गॉट वेरी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। ICPC का भी रिसेंटली जितने भी वो बच्चे जीत रहे हैं वो AI के हैं, ठीक है। तो वो क्या वो उनको सिर्फ यही बताते हैं, प्रोग्रामिंग बेसिकली है ना, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स था वो, मैं प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम कह दिया। तो
ये एक है पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वन शुड नॉट गेट डिस्करेज्ड। आपका कोर सेम है, मेक श्योर ये कोर आपका स्ट्रांग हो, ठीक है, दैट्स ऑल। ओके, तो अभी जैसे आई एम श्योर जब आप आए थे तो मैकेनिकल इंजीनियर टॉप पे थी, जी सबसे हाईएस्ट मेरिट उसी का था। एंड आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि ग्रेजुअली वो शिफ्ट हुआ कंप्यूटर रिलेटेड ऐसे फील्ड्स पे। तो आपको क्या लगता है इसकी क्या रीज़न है और ये कब तक ऐसे ही रहेगा? अच्छा, ये जो है ना, ये वेरिएट करता है, फ्लक्चुएट करता है, मैं बता दूँ, ठीक है। कभी मैकेनिकल ऊपर चली जाती है, कभी कंप्यूटिंग आ जाती है, कभी लेट्स से इंजीनियरिंग साइंसेस कभी रही हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। लेकिन जनरली ना मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जीआई के में ना ये टॉप 3 में रही हैं। मतलब ये जो कहते हैं ना डाउन हो गई, डाउन ऐसी नहीं हुई, मतलब डाउन ये फर्स्ट से सेकंड पे आ गई है ना, तो ऐसे फर्स्ट से फिफ्थ सिक्स्थ पे तो आई नहीं। तो जनरली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल टॉप पे है। बट आई नो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान जिनका इलेक्ट्रिकल बंद कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो है ना वो सेक्शन भी 2 या 3 सेक्शन पे जा रहे हैं ना, तो विच इज़ अ गुड साइन कि ठीक है। अभी रिसेंट क्यूएस रैंकिंग में इन मैकेनिकल एंड इन इलेक्ट्रिकल वी हैव बीन रैंक्ड अमंग टॉप, मुझे याद नहीं है लेकिन टॉप 300 200 में आए हैं ना। तो लेकिन इसका जो है ना ताल्लुक, वो मार्केट डिमांड से बहुत है, ठीक है। एक तो वैसे थोड़ी वो कुछ चीज़ें होती हैं वैसे ही ज़्यादा हो जाती हैं, क्लिक कर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा एआई है, वो हर चीज़ एआई, और वो मूवीज़ भी इस तरह बन रही हैं हर जगह, तो लोगों को एआई का ज़्यादा हो रहा है। प्राइमरली सारी कंप्यूटिंग ही है। एआई तो विद द इन्वेंट ऑफ डीप लर्निंग तो एआई ने बूम पकड़ा है, क्योंकि पहले तो जितनी थी ना वो एआई ऐसी थी कि वो अगर रन हो जाती ना तो एआई बहुत कमाल कर देती। मैं एक बहुत नाइव किस्म की एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन वो रन कहाँ पे होती, वो प्रोसेसिंग पावर थी नहीं। फिर क्या हुआ, फिर जीपीयूज आए, ठीक है। वो स्टार्ट में एनवीडिया ने बनाया जीपीयू गेम्स के लिए, इसलिए उसको ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। फिर उसके बाद डीप लर्निंग के या मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स उस पर रन हुए तो उसने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी, और फिर ये गए वो गए एआई, ठीक है, और अभी वो जा रही है। तो इसका ना मेरिट का ताल्लुक, या मेरिट से मुराद स्टूडेंट की डिमांड है ना, उसका ताल्लुक जो है ना वो जॉब मार्केट से। तो मैं आपको ये बता दूँ कि कंप्यूटिंग इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, ठीक है। देखें, आप पहले बैंक 10 साल पहली बात करो, बैंक में आपको चेक लिखना पड़ता था। 10 साल ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। चेक लिख के फिर उधर जाते थे, चेक दे देते, फिर वो सिस्टम में एंटर करता, वेरीफाई करता था। अभी तो बैंक में एक दफ़ा जाएँ, अकाउंट खुलवाएं, और उसके बाद सारी ज़िंदगी बैंक ना जाए, बैंक आपकी जेब में पड़ा है, मोबाइल, ठीक है। नादरा ने भी अभी वो नादरा ऑफिस जाने की ज़रूरत भी नहीं है, उन्होंने वो ऐप बनाई है, ठीक है। तो वो भी आपकी जेब में आ गया, ठीक है। और आपने अगर घर हमारे दिनों हम वो एक कार्ड लेते थे, लाइन में ठहरते थे, कार्ड एंटर करते थे, घर में पेरेंट्स से बात करते थे, अब क्या है, वीडियो। इसके पीछे सारा क्या है, कंप्यूटिंग है, ठीक है। और ये इतना इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है, ठीक है, इतना फॉर एग्जांपल अब नई एक डोमेन आ रही है, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जिसमें आपकी पेमेंट्स सारी जो है ना वो कंप्यूटिंग के थ्रू होनी है, ब्लॉकचेन भी आना है, उसमें बहुत कुछ आना है, और पीपल आर गोइंग टू ऑफर डिग्रीज इन फिनटेक, और इफ़ नॉट प्रॉपर डिग्रीज तो स्पेशलाइजेशंस। तो ये जो आपकी बीबीए सीबीए है ना, ठीक है, सीबीए तो नहीं है, बीबीए है, ठीक है, या बीएस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या साइंसेज है, उसमें फिनटेक आ जाएगा, उसमें भी कंप्यूटर आ जाएगा। तो दिस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। अननेसेसरी दुनिया में बिजली का ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आपने जो सिस्टम्स बन भी गए हैं, बैंकिंग का सिस्टम बन गया है, एडमिशन सिस्टम्स बन गए हैं, और पोर्टल बन गए हैं, आपको एटलीस्ट कोई कंप्यूटिंग का बंदा उसकी मेंटेनेंस के लिए तो चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। तो ट्रेंड विल रिमेन द सेम, थोड़ा ऊपर नीचे आएगा। जिस तरह अभी आपको कहते हैं ना, बहुत गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारा ले ऑफ किया है, बहुत से लोग कहते हैं यार ये बस ख़त्म होने वाला है, ठीक है। कुछ कंपनीज ने कुछ डेटा साइंस के यूनिट्स भी बन के, नहीं, ये इस तरह है नहीं। ये कोरोना का बैकलैश है। कोरोना के दिनों में इतनी डिमांड थी कंप्यूटिंग सिस्टम्स की। देखें, कोरोना से पहले बहुत से लोगों को जूम का पता भी नहीं था, और जब जूम आया तो लोगों को यूज़ करना भी नहीं आता था। अक्सर किसी का कैमरा ऑन रह गया, किसी का माइक ऑन रह गया, ठीक है, हरकतें इसमें रिकॉर्ड हो गई, या कोई आवाज़ जो है ना वो कोई लीक हो गई आवाज़ ना। लेकिन अब तो बच्चे को जूम और वो सब कुछ यूज़ करना आता है, ठीक है। तो लेकिन उन दिनों इतनी हायरिंग कर ली थी सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, और अब चूँकि वो डेवलप हो चुके हैं और प्रोडक्शन में अब तो सिर्फ मेंटेनेंस चाहिए, तो फिर लोग कंपनीज ने ले ऑफ किए हैं। और ये ले ऑफ भी इट्स गुड, क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई लो स्किल्ड लोग ले ऑफ नहीं किए, उन्होंने हाई स्किल्ड ले ऑफ किए हैं। ये क्या करेंगे?
ये अपने स्टार्टअप बनाएंगे, ये अपनी कंपनीज बनाएंगे, अपने कुछ ना कुछ बनाएंगे, तो यू विल सी दिस ग्रोइंग इंशाल्लाह। राइट। सो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि डाइवर्टिंग बैक टू योर एक्सपीरियंस इन जीकी, आपने ट्रेंड्स क्या लिखे स्टूडेंट्स में पर्टिकुलरली, कि लाइक आपने जो लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाया, कि आपने स्टूडेंट्स में जो यहाँ से आपने शुरू से पढ़ाया या फिर वो ग्रेजुएट है, तो व्हाट ट्रेंड्स हैव यू नोटिस इन स्टूडेंट्स इन योर 10 year of teaching so far? ना जी कि मैं ट्रेंड तो जनरली जो है ना वो ठीक रहा है। अच्छा वैसे ना कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी, मुझे एक एलुमनाई से बात करना, एलुमनाई हमें जी का जो ग्रेजुएट लेट्स से जो 99 में ग्रेजुएट हुआ हो या 2004 में, नहीं हमारे ज़माने में जो जी के था ना, अब तो ये नीचे जा रहे हैं। या कोई लेट्स से किसी और यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हो, लाउंस का हो या फास्ट का होना, वो नहीं हमारे ज़माने में फास्ट में तो CS का एक सेक्शन होता था, अभी इन्होंने 20 सेक्शन कर दिए हैं, ठीक है, तो ये नीचे जा रहा है, ठीक है। या नहीं, ये जनरल बात हर जगह आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है। मुझे एक कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल याद है कि उनके एलुमनाई से मेरी कोई सिटिंग हुई, और वो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं हमने देखा है कि हर साल कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल जो है ना इट्स गेटिंग बेटर, ठीक है। लेकिन अदरवाइज जनरली जो है ना वो ये होती है, और ये एक फैशन सा बन गया तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एलुमनाई पे, और बाबे एलुमनाई में ना जो बाबे बन चुके हैं, ठीक है, कि नहीं हमारे ज़माने में तो हमने ही तीर मारा था और अभी। लेकिन ऑनेस्टली व्हाट आई सी कि वक्त के साथ साथ जो है ना स्टूडेंट्स भी बेहतर हुए हैं, ठीक है। उसको क्वांटिफाई जब आप करेंगे ना एक्चुअली फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो और ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं, और ठीक है कभी होता है कि कोई एक बैच नीचे आ गया, कोई बुरा आ गया, अच्छा आ गया, लेकिन जनरल अगर आप ट्रेंड देखें ना इट हैज़ इम्प्रूव्ड। स्पेसिफिकली मैं GIK की बात करूँ, इट हैज़ इम्प्रूव्ड लॉट। मेरिट पे है, कभी वो मेरिट प्रायोरिटी बच्चों की कम होती है किसी प्रोग्राम की, तो उस साल थोड़ा डाउन चला जाता है, ठीक है। लेकिन जी यहाँ पे GIK का फर्स्ट ईयर कॉमन है और दूसरा वैसे कॉमन है सब कुछ, अभी तो 24 घंटे इधर ही हैं, ठीक है। तो और फिर इधर आपने सोसाइटीज़ में भी रहना है और रहना भी आपने सीखना है, ठीक है। और फिर बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म की फैकल्टी मेंबर से भी आपने डील करना है, ठीक है। तो वो जो आपको बनाती है ना यहाँ पे, वो कोई दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं बनाती। तो ट्रेंड जो जनरली है वो मेरे ख्याल में पॉजिटिव है, अच्छा है। और ये नहीं हुआ कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर 11 साल पहले स्टूडेंट्स आते थे तो किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को एज FYP लेते थे, तो आज की डेट में कोई आसान ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में उससे ही कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। तो वो मैं टू गिव एन एग्जांपल, मैं कभी एक्रेडिटेशन विजिट्स में किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ ना, तो मैं उनसे FYP लिस्ट मंगवा लेता हूँ कि FYP आपने क्या किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी, नाम नहीं लेना चाहिए, तो उनका मैंने FYP, तो उन्होंने कहा कि हमने एक FYP था डिज़ाइनिंग अ फैशन वेबसाइट, एक था डेटा एंट्री ने डेटा पोर्टल फॉर हॉस्पिटल, एक था डेटा पोर्टल फॉर ट्रैफिक पुलिस, क्या था इंसर्ट डिलीट सर्च अपडेट, ठीक है। सारे ये डेटाबेस का एक प्रोजेक्ट है, प्रॉब्लम असाइनमेंट, सारे FYPs, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स। अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि द स्किल यू विल लर्न, ठीक है। देयर विल बी सम AIs, देयर विल बी सम कॉम्प्लेक्स डेटा वेयरहाउसेस बिहाइंड, और देयर विल बी सम डेप्थ कैमरा इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट एज़ कम्पेयर। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये है कि व्हेन यू डू एन FYP, तो आई हैव सुपरवाइज्ड एन FYP जिसमें एक स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस से था, एक स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, एक इंजीनियरिंग साइंस से था, ठीक है। और हम उसमें कर क्या रहे थे, हम एक फ़िश बना रहे थे, एक छोटी सी फिश थी, ठीक है। उसका काम ये था पाइप्स में से, पानी की पाइप नहीं, उसमें से गुजरना है, ठीक है। करना क्या है, उस सारे में से गुजर के पाइप में ब्लॉकेजेस आइडेंटिफाई करने हैं, उसको ठीक करना और वापस आना है फिश, ठीक है। ये जस्ट इमेजिन कंप्यूटर साइंस का बच्चा कर रहा है, मैकेनिकल का बच्चा कर रहा है, इंजीनियरिंग साइंसेज का बच्चा, इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, इसमें कंप्यूटिंग इन्वॉल्व है, कंट्रोल सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। और उसमें एक एडवाइज़र मैं था, एक डॉक्टर हसन सियाद थे, और एक मैकेनिकल से डॉक्टर तकी जीमा थे, कौन थे ना। तो वी गेट टू लर्न अ लॉट एज वेल। तो जो GIK में ट्रेंड जो है ना वो ये सेम है या अच्छा है। तो और दूसरा ये है कि यंगस्टर से आप मिले ना, यंगस्टर से, तो यहाँ पे तो और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, मतलब जब हम जाते हैं एक्रेडिटेशन विजिट्स में या अपनी पुरानी किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, तो वन गेट्स अ लॉट ऑफ होप कि यार, उसकी बहुत बड़ी वजह है ना, वो ये है कि हम जब अपने ज़माने में ना हमने पॉइंटर्स सीखने होते थे ना, यूट्यूब तो था नहीं ना,
ठीक है, डायल अप कनेक्शन होता है, की ओके, फिर डायल अप कनेक्शन थोड़ा सा याहू का पेज आया, फिर वो भी गायब हो गया। ठीक है, तो हम जाते थे, वो बस में बैठते थे, सदर जाते थे उन दिनों। आई रिकॉल सदर में, पेशावर सदर की बात करूँ, वहाँ पे अरबाब प्लाजा में नीचे वो डिस्काउंट बुक सेंटर, वहाँ पे एक बुक लेते थे, वो पायरेटेड बुक होती थी, वो आते थे, वो छुपा के लाते थे, कोई दूसरा दोस्त देख ना ले, और हॉस्टल में छुप के पढ़ते थे पॉइंटर किस तरह है। ठीक है, आज की डेट में क्या है, आज की डेट में तो हर चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे है, आपने बस क्लिक करना है यूट्यूब पे। आपको इंग्लिश में समझ नहीं आया, उर्दू में देख लें, उर्दू में नहीं तो आप किसी और लैंग्वेज में मिल जाएगा। और नहीं है तो आप कनेक्ट कर लें किसी को लिंक्डइन पे, और यू गेट टू लर्न अ लॉट ना। उसकी वजह से जो है ना, क्वालिटी बेहतर होगी काफ़ी। अच्छा, टॉकिंग अबाउट FYPs, आपका बैचलर में क्या था FYP? हाँ, मेरा बैचलर में FI था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर। अच्छा, वो आज की डेट में बड़ा कॉमन हो गया है। होता ये है कि आपने कोई पेज लिया, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो उसको स्कैन करना था, और उस टेक्स्ट को रिकग्नाइज करके एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। यानी कि आप वैसे स्कैन करते हो, वैसे पिक्चर स्कैन हो जाता है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है, कोई लिखी हुई है, हाय, हेलो, हाय, आई एम ए चिकन, ठीक है, तो वो टेक्स्ट एडिट होके वर्ड में चला जाए, ठीक है। तो वो हम करते थे। उसमें हमने इमेज प्रोसेसिंग, मैंने बनाया था विजुअल स्टूडियो उन दिनों, अच्छा उसमें विजुअल C++ में बनाया था। तो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट वर यू व्हेन यू वर इन योर बैचलर्स? हाँ, शुक्र है आपने बैचलर्स का पूछा, मुझसे उससे पहले का नहीं पूछा। मैं उससे पहले का वो बता देता हूँ। स्कूल कॉलेज में ना, मैं तो बिल्कुल ऐसे कोई बेवकूफ़ किस्म का स्टूडेंट होता था। मतलब मैंने थोड़ी, आप जब स्टार्ट करने से पहले आपने कहा ना आपके बारे में पूछेंगे ना, मैंने कहा मेरी अपने बारे में कोई अच्छी राय नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि स्कूल में तो मैं क्लास में पीछे ही बैठता था। ठीक है, और मुझे हर साल ना अपने स्कूल में बिहेवियर का सर्टिफिकेट मिलता था। इसका भी मैं किसी से बात ही नहीं करता था, मेरा बिहेवियर ही अच्छा होता था। और क्या था। फिर कॉलेज में जब आया ना, तो उसमें somehow I think probably it was my father who talked to my टीचर्स के, यार इसमें कोई कॉन्फिडेंस की शदीद किस्म की कमी है। तो वो स्कूल में मेरे टीचर जो मुझे बड़े पसंद थे, मैं सर अज़हर होते थे केमिस्ट्री के, हालांकि केमिस्ट्री मेरी सबसे वीक थी। लेकिन वो सर मुझे बड़े पसंद थे। तो एनीवेज, तो कॉलेज में मेरे एक फ़िज़िक्स के टीचर थे, सर सैफ उनका नाम था, और एक और फिज़िक्स के थे, वो सर ताहिर थे। कॉलेज की बात है ना, तो उन्होंने करना इस तरह शुरू किया कि वो फिज़िक्स जब पढ़ा लेते थे ना, उसके बाद मुझे कहते थे कि तुम क्लास को प्रेजेंट करो, दोबारा से पढ़ाओ। अच्छा, पहले दिन तो कॉलेज FSC, ठीक है, उसमें पहली दफ़ा तो मैं जब गया तो मेरे टाँगे कहाँ पर ही है ना, बस मैंने जो कुछ भी था कर दिया। लेकिन 2 3 4 दफ़ा के बाद तो मैं क्लास का जो है ना अबू बन गया। ठीक है, और उस पर फ़ायदा ये हुआ कि दो चीज़ें, यानी कि वो कॉन्सेप्ट ही मैं सीख जाता, उसके बाद फिर मेरी वो टीचिंग स्किल्स भी बेहतर हो गई, विच गेव मी अ गुड प्लेटफॉर्म। लेकिन व्हेन आई वाज इन माय BS, तो एंड दैट वाज इन कंप्यूटिंग, तो आई वाज अ गुड स्टूडेंट। लेकिन एक और स्टूडेंट था, वो मुझसे भी बेहतर था, अच्छा। और मुझसे भी बेहतर है। उसका नाम मैं बता दूँ, उसका नाम है नोफेल फारूकी। ठीक है, डॉक्टर नोफेल फारूकी, नाउ इज डॉक्टर, ही डिड हिज PhD फ्रॉम कॉच यूनिवर्सिटी, टर्की। तो वो तो जीनियस था। आई रिकॉल हम इनिशियली नए लिंक लिस्ट में नोड ऐड करना सीख रहे थे, और मेरे ऑनेस्टली ना मेरे को 3 दिन लगे वो समझने में कहानी। अब आप खुद ही सोच लें कि वो दिन थे जब यूट्यूब ट्यूटोरियल्स कुछ नहीं थे, टीचर पढ़ा के चला जाता था। ठीक है, फिर आपने बुक से ही देखना था, तो जस्ट इमेजिन क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन वो इट टुक मी 3 days, एंड इट टुक दैट गाय आई थिंक 5 or 10 minutes टू अंडरस्टैंड। और मैं उससे थोड़ा वो जेलस भी होता था, लेकिन ही वॉज सो नाइस गाय ना, रादर ही इज सो नाइस गाय, कि वो जो है ना उसमें 5-6 मिनट में। तो उसमें आई डोंट नो अभी होता है कि नहीं, वो यूनिवर्सिटी में होता है ना, कोई एक सीनियर जो है ना, उसका एक फ़ैन फॉलोइंग होती है कि फ़िलाना बिलाल भाई या नुमान भाई इनको समझ आती है, तो आप उनसे जाके समझ लेते हैं। आई डोंट नो, आजकल चूँकि चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो कुछ लोग उसके फ़ैन थे, कुछ हमारे फ़ैन थे, फ़ैन क्लब अलग अलग थे, थोड़ा कॉम्पिटिशन भी चला रहता था। तो लेकिन ये कि आई वॉज अ गुड स्टूडेंट इन माई BS। माई GPA was 3.67 out of 4, तो ठीक थी। बट दिस वेरीज, वैसे बता दूँ, ये जो GPA ना यूनिवर्सिटी वेरी करती है। फॉर एग्जांपल GA में 2.6 वेरी गुड GPA हियर, ठीक है, लेकिन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लेता, ठीक है, तो वहाँ पे हम इधर फॉर एग्जांपल आई रिकॉल हमने एक ग्रेजुएट एडमिशन के लिए एक यूनिवर्सिटी की एक गोल्ड मेडलिस्ट थी, उनकी GPA थी 4 out of 4।
इमेजिन 4 आउट ऑफ 4, ठीक है। तो उनका हमने इंटरव्यू किया, तो हमने पूछा आपको क्या कोर्सेज पसंद है, उन्होंने कहा वो पे फलाना। तो मैं शुरू हो गया स्ट्रक्चर यूनियन में डिफरेंस, मैं हर एक से पूछा हूँ स्ट्रक्चर यूनियन में क्या डिफरेंस है। मेजोरिटी को नहीं पता होता स्ट्रक्चर का, पता यूनियन वालों को नहीं पता होगा। और मेरे कोई 8-9 सवाल थे, एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए, ठीक है। 4 आउट ऑफ 4 तो मतलब यू एक्सपेक्ट कैसे सब कुछ पता होगा ना, परफेक्शन है। तो अगेन ये स्टैंडर्ड है ना, ये ज़रा वेरी 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 करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो जो फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें तो खैर नहीं, बस यू आस्क योर क्वेश्चन। ऐसा चलें JIK से थोड़ा सा बाहर आते हैं। तो आजकल एक हॉट टॉपिक है चैट GPT, हाँ जी। ठीक है, और बल्कि AI की भी अभी हम बात कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि चैट GPT जो है अभी इन द कमिंग ईयर्स सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करेगा, और स्पेसिफिकली कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा? सही हो गया। हाँ, चैट GPT देखें, जनरली स्पीकिंग AI की डोमेन है। AI में एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग भी आ जाती है, इमेज रिकग्निशन, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग। सो AI में एक डोमेन है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में फिर क्लासेस सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग है, ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। फिर उसमें सुपरवाइज लर्निंग में डीप लर्निंग है स्टफ। फिर एक डोमेन है जो कहते हैं क्वेश्चन आंसरिंग की डोमेन, ठीक है। तो चैट GPT उधर आता है, फिट होता है पूरी इस सारी में, ये वहाँ पे फिट होता है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक ये बिल्कुल ऐसे कल आपका खाना भी चैट GPT बनाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगले इलेक्शन भी आपको चैट GPT बता देगा, ऐसा नहीं है। हैविंग सेड दिस थिंग, इसकी यूटिलिटी है, बहुत बड़ी यूटिलिटी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई रिसेंटली सीन मल्टीपल ऑफिस असिस्टेंट्स जो कि पहले एक टूटी बजी अंग्रेजी में कुछ लिखते थे, वो क्या करते हैं, वो इंग्लिश वहाँ पे से करते हैं, वहाँ पे पेस्ट करते हैं, वो आपकी इतनी आउटस्टैंडिंग आपको जो है ना वो कंटेंट बना के दे देता है। तो चैट GPT इज़ यूज़फुल, ठीक है। इसके पॉजिटिव्स में ये है कि आपको जो फॉर एग्जांपल एक कंटेंट आपने लिखना है और विच रिक्वायर्स यू लेट्स से 5 या 6 मिनट्स, ठीक है, टू रीड एंड प्रूफ रीड एंड रीफिक्स दैट, ठीक है। तो वो आपको वो हेल्प कर देगा। रिसेंटली आप लोगों का फाइनल पेपर, ठीक है, उसमें मैंने एक सवाल चैट GPT से दिया था, ठीक है। तो वो वैसे ही मैंने कहा ये बच्चे यूज़ करते हैं हमारी असाइनमेंट बनाने के लिए, तो अब वेटेड फॉर टैट ना, अभी इनको इसमें से क्वेश्चन भी बना के दो, तो दैट हेल्प। रिसेंटली मैंने एक कोर्स में एक क्वेश्चन और बनाया था चैट GPT से, और मैं ऑनेस्टली मैंने बस थोड़ा सरसरी देख के सवाल, क्योंकि आपने वेरीफाई भी करना होता है ना, वो ऐसा ना कोई नॉनसेंस किस्म की चीज़ पूछ ले, तो मैंने बना के दिया। लेकिन मैंने आई वॉज मार्किंग द पेपर एंड आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड विद चैट GPT, ठीक है। उसने बड़ा आसान सवाल बना के दिया था, हालांकि मैंने उसे, तो उसमें ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि you will always require a domain expert to verify whatever chat GPT has answered or it has delivered. For example, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब वो एक मैं अक्सर कभी कभी फाइनल पेपर में एंड में वो ट्रिकी क्वेश्चन दे देता हूँ। वो एक क्वेश्चन था कि एक बच्चा अपने फादर के साथ जा रहा, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, फादर जो है ना वो ही इज़ पास्ड अवे, और बच्चे को हॉस्पिटल ले गए हैं। बच्चे को हॉस्पिटल ले गए हैं तो डॉक्टर ने देखा तो कहते हैं हो दिस इज़ माई सन। तो हालांकि हाउ इज़ दिस पॉसिबल ना, तो इसका आंसर क्या है कि वो जो डॉक्टर है वो फादर तो चले गए ना, तो वो डॉक्टर कौन है, डॉक्टर उसकी मदर है, ठीक है। तो चैट GPT को मैंने ये कहा तो उसको नहीं पता था, ठीक है। तो वो फिर चैट GPT कहता नहीं ये प्रॉब्ली उसे लग रहा है कि मेरे बेटे की तरह है या इस तरह वॉट एवर ना, उस पर मैंने कहा ना ये उसकी मदर है, उसने कहा हाँ ठीक है। तो आई वॉज लाइक अब इसने सीख लिया होगा ना, तो मैंने उससे 2 दिन बाद दोबारा उसको वही सवाल पूछा, उसने फिर वही जवाब दे दिया, ठीक है। वजह ये है कि उसने जो जिस पे ट्रेनिंग की हुई है ना, वो टेम्परेरी तो अपने आप को ठीक कर लेता है, बाद में वो अपने वेट्स अपडेट नहीं करता। तो लेकिन हैविंग सेड दिस थिंग, अभी तो वो इमेजेस भी बना रहा है, बहुत कुछ बना रहा है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड टूल टू गिव यू इनिशियल स्टफ। फॉर एग्जांपल आप देखें अब वॉइस ओवर AI भी बल्कि AI वॉइसेस भी आ गई ना, ठीक है। तो अगर आपने कोई कंटेंट बनाना है और आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो यू कैन यूज़ सच टूल्स टू फिक्स योर कंटेंट, ठीक है। तो चैट GPT इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट, सो इट इज़ गोइंग टू बी गुड टूल। लेकिन ये बता दूं कि ये एक नई, जैसे व्हाट्सएप है ना, ठीक है, अब तो व्हाट्सएप एसेंशियल किस्म की चीज़ बन गई है, ठीक है। तो इन कमिंग डेज चैट GPT भी एक एसेंशियल चीज़ बननी है, जिसके ऊपर इसके ऊपर लोग बिजनेसेस बनाएंगे अपने। फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव है, कोई सवाल पूछना है ना, तो वो उनके पीछे वो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा होगा जो कि आगे पीछे बंदा नहीं होगा, पीछे कौन होगा, चैट GPT होगा, वो जवाब दे रहा होगा। तो इट विल बी लाइक दैट।
अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अभी ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वगैरह हैं, तो ये चैट जीपीटी को काउंटर कैसे करेंगे? मतलब फॉर एग्जांपल कोई एमजीएस की फैकल्टी है, Yes. सही है, एंड एमजीएस की फैकल्टी है एंड कोई उन्होंने ऐसे दिया हुआ है अपना असाइनमेंट में, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो कि खुद किया है स्टूडेंट्स ने या फिर चैट जीपीटी से करा है? और आपको क्या लगता है कि ये लाइक कब तक रियलाइज़ करना स्टार्ट करेंगे लोग? इसे देखें, अगर ना फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस पेपर में देना शुरू कर दूं कि राइट 4 एडवांटेजेस एंड 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट एंड एरेज, ठीक है, तो आप चैट जीपीटी से ही करेंगे, ठीक है। एज़ कम्पेयर्ड मैं आपको एक डेटा सेट दूँ, ठीक है, कैंपस का डेटा सेट है जो कि नोट पैड की फाइल में, और आपको मैं कहूँ इसको रीड करें इस डेटा सेट को और इसमें से एवरेज जीपीए निकाल के दे दें, तो ठीक है, मे बी यू गेट एन सम इनिशियल कोड फ्रॉम ChatGPT टू गिव यू एन आइडिया, बट यू विल एट द एंड यू विल एंड अप डूइंग योर ओन कस्टमाइजेशन। अदरवाइज अगर आप स्क्रैच से बना रहे हैं तो आप तो इन द एज ऑफ ChatGPT university instructors are supposed to make their assessment methods more robust, ठीक है। वो ट्रेडिशनल किस्म के जो सवाल देने हैं ना कि राइट एन ऐसे ऑन योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, या राइट अबाउट अरब स्प्रिंग फॉर एग्जांपल ना, यूनिवर्सिटी में किसी टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग में आपको अरब स्प्रिंग क्या है, ठीक है, तो वो तो आप ChatGPT में, लेकिन उसमें फिर आप उससे पूछें स्पेसिफिक क्वेश्चंस, स्पेसिफिक सेक्शंस बनवाएं, तो देन दिस कैन बी यूज ऑफ ChatGPT कैन बी मिनिमाइज्ड, ठीक है। फिर अगेन व्हेन यू हैव गॉट दैट असाइनमेंट, उसके बाद फिर उसके ऊपर डिफरेंट असेसमेंट, असाइनमेंट इज़ वन असेसमेंट, द क्विज इज़ अनदर असेसमेंट, और वाइवा और प्रेजेंटेशन इज़ येट अनदर असेसमेंट, ठीक है। तो आपने वो अपनी ट्रायंगुलेशन भी उस वाले में करनी है, तो आपकी जो इंस्ट्रक्टर्स के लिए जो असेसमेंट है ना, वो थोड़ी आपको मॉडर्न करनी पड़ेगी इस लिहाज से। Alright, so moving on from this, आपका क्या राय है कि फ्यूचर क्या है in terms of the field वगैरह, टेक वगैरह in the entire industry as a whole, कि कंप्यूटिंग, क्या आपको टेक ट्रेंड लग रहा है कि क्या होगा फ्यूचर में in the next 10 years let's suppose? अच्छा ये बताऊँ, मैं व्हेन आई डिड माय बैचलर्स, तो माय प्रोफेसर हु वाज माय FIP एडवाइजर, ही वाज AI एक्सपर्ट, प्रोफेसर डॉक्टर आबिद, KP में पाइनियर हैं। आप तकरीबन KP में जितने भी पुराने लोग हैं उनके वो टीचर हैं, ठीक है, मतलब मुझसे भी पुराने लोग हैं उनके भी टीचर हैं, ठीक है, जो मेरे टीचर हैं उनके भी वो टीचर हैं, ठीक है। और वो NLP AI में एक डोमेन है नेचुरल प्रोसेसिंग, उसमें उन्होंने PhD की, और ज़्यादातर वो पश्तो टेक्स्ट और उसकी उसमें काम करते हैं। तो खैर हम जब ग्रेजुएट हुए ना, तो मैंने आई वॉज इंस्पायर्ड बाय हिम, तो मैं AI में मेरा दिमाग था ना कि यार इसमें कुछ करें, तो मैंने अपने एक सीनियर से पूछा कि नाम नहीं लेता, ठीक है, तो मैंने कहा एक्स भाई ये कौन सी डोमेन है, वो नहीं AI इज़ अ डेड फील्ड, नेटवर्क्स, गो इन नेटवर्क्स। अच्छा नेटवर्क्स में मुझे ज़्यादा क्लिक, खैर आई वेंट टू AI एंड स्टफ ना। तो होता ये है कि आप जिस बंदे से सवाल करते हैं ना, अगर वो इमेज प्रोसेसिंग करना, वो आपको क्या इमेज प्रोसेसिंग, वो कंप्यूटर विजन या इमेज कंप्यूटर विजन का आएगा, अगर रोबोटिक्स या ड्रोन में काम कर रहा है या डेटा माइनिंग होगा डेटा माइनिंग, बिकॉज उसको वो चीज़ें पता हैं, वो एक्सपर्ट है उसका। तो मेरे ख्याल में ना हर चीज़ की जो है ना कंप्यूटिंग में ना, ऑनेस्टली हर चीज़ का फ्यूचर है, हर चीज़ का, क्योंकि कंप्यूटिंग इटसेल्फ इसका फ्यूचर है। यू गो इनटू नेटवर्क्स, ठीक है, 4G 5G की बात हो रही है, ठीक है, आजकल कौन सा जी है 5G 5G, ठीक है। तो इट इज़ गोइंग, फिर एक टाइम था वो एक होता था मेरे जहन से निकल गया, नेटवर्क LTE नेटवर्क होता था, मैं खैर क्योंकि वैसे आपको आइडिया होगा कि नेटवर्क इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो लेकिन ये है कि लेकिन वो चीज़ भी इवॉल्व हो रही है। फिर इमेज प्रोसेसिंग, अब आजकल की डोमेन में से जो रिसर्च एंड स्टफ में ना ज़्यादा चीज़ जो आने वाली है ना AI में, वो आनी है जिसकी यूटिलिटी में नज़र आ रही है, वो कंप्यूटर विजन है। क्योंकि क्लासिफिकेशन तो हो गई है, लेकिन अब हमने जो अपने कंप्यूटिंग जो डिवाइसेस हैं ना, उनको आंखें देनी है कि वो ये रिकग्नाइज कर सकें, ये बंदा है, ये बंदी है, ये बैग है, ये सोफ़ा है। तो जो मुझे ज़्यादा स्कोप नज़र आ रहा है ना आज की डेट में, वो मुझे कंप्यूटर विजन कपल्ड विद AI ऑफ कोर्स। अदरवाइज हैविंग सेड दिस थिंग, हर चीज़ का स्कोप। कुछ चीज़ें थोड़ी हो गई हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल डेटाबेसेस जो थी अभी भी हैं, वो थोड़ी नो SQL, नॉट ओनली SQL की वजह से थोड़ी उस पर चली गई हैं, थोड़ी बैक एंड पे चली गई हैं। Alright, so we're going a bit ahead in time, so we're going to wrap things up.
एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा बिफोर एंडिंग में, मैं हर बड़े से पूछ रहा हूँ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ एंड जीके एज अ होल इन द नेक्स्ट 10 to 20 years? GIK as well and myself. अच्छा, वे डू आई सी, और एक तो ये है ना जो मैं फोरकास्ट करूँ, एक ये है कि जो मैं चाहता हूँ, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ वो तो मैं नहीं बोलता, ठीक है ठीक है, लेकिन ये है कि आई थिंक GIK इज़ गोइंग टू ग्रो, ठीक है। जो पेस है, मैं आप देखें, GIK ने इट स्टार्टेड विद अ वेरी गुड फंडिंग। आपको मैं वैसे बताऊँ, GIK और फास्ट का जो है ना स्पॉन्सर जिसे कह लें, वो एक ही है। BCCI पहले बैंक होता था, BCCI बैंक, ठीक है। आबला सनाब्दी का नाम सुनो, ठीक है, HUB। तो ये वो लोग थे जिन्होंने फ़ंड किया था पाकिस्तान में एजुकेशन को, और उन्होंने कहा था यहाँ पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। तो दे फंडेड फास्ट एंड GIK एज वेल। दोनों के जो पेरेंट बॉडी है ना BCCI, वो एक ही है। और फास्ट इज़ डूइंग गुड इन कंप्यूटिंग एंड GIK इज़ डूइंग एक्सलेंट इन इंजीनियरिंग एंड ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग एज वेल। और फिर ऐसा भी हुआ है कि फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं GIK के फॉर डिफरेंट रीजंस, पॉलिटिकल एंड स्टफ। और फिर GIK में ये है कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स आर कॉस्टली। जस्ट टू क्वान्टिफाई ऑन दिस सरफेस, यू कैन स्टार्ट अ कंप्यूटिंग प्रोग्राम, 1 करोड़ में आप कंप्यूटिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप 7 करोड़ में भी सिविल का प्रोग्राम स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब इट कॉस्ट्स अ लॉट ना। एंड GIK being a private sector institute, we have got materials engineering, mechanical engineering and materials and stuff, and GIK is investing, तो एक पॉजिटिव चीज़ चल रही है ना। और फिर आप देखें GIK has grown a lot, ठीक है। हमारी स्टूडेंट बॉडी इनिशियली जो व्हेन आई जॉइंड इट वाज लाइक 200 बच्चे हम एडमिट करते थे, या 180 बच्चे एडमिट करते थे। आज हम कितने करते हैं? 600 करते हैं, और फिर जाते जाते 500 रह जाते हैं, जितने भी रह जाते हैं ना। इट हैज़ ग्रोन एंड वी आर एवरी ईयर वी आर एडिंग न्यू प्रोग्राम्स एज वेल, ठीक है। अपने कंप्यूटिंग के काफ़ी कर रहे हैं, प्रॉब्ली फ्रॉम नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग इन फोटोनिक्स एंड स्टफ ना, जो प्लान्स हैं। तो आई सी कि GIK इज़ गोइंग टू एक्सेल। और फिर ये है कि स्टूडेंट्स, बहुत से एलुमनाई आर नाउ सर्विंग द इंस्टीट्यूट in the capacity of deans, and probably one day they will become rector or prorector as well, which is a positive sign कि alumni है वो वापस आके यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। तो ऐसे ही GIK is going to do very good। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में एक GIK नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में कई GIKs होने चाहिए। ये एक चीज़ है जो ज़्यादा होनी चाहिए। Anyways, and what about you? My career has been switching managerial is, आपने कहा मैं I have been dean, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं लोग, डीन बनते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं मैं कुछ और बनूँ ना, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म का है। तो मेरे उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक्स दोनों आती है, लेकिन मुझे ऑनेस्टली ना एकेडमिक्स और एकेडमिक प्रोफाइल, तो व्हाट आई सी नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स, 10 years. 20 कर लें इसको ठीक है। तो आई फील नाउ आई एम ऑलरेडी फुल प्रोफेसर, ठीक है। तो ये तो एकेडमिक में ये रैंक यू कैन, व्हाट आई फील कि प्रॉब्ली आई प्लान टू हैव अ कपल ऑफ 2 or 3 स्टार्टअप्स इंशाल्लाह। और आई फील जो मेरा टारगेट है ना वो ये है कि मैंने कुछ 1-2 स्टार्टअप्स बनाने हैं जिनको अपनी फुल फॉर्म कंपनीज बनाने हैं। एक आध तो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स भी हैं, एक जो है ना वो इफेक्टिव कंप्यूटिंग से उसका ताल्लुक है। इफेक्टिव कंप्यूटिंग क्या होती है? इफेक्टिव कंप्यूटिंग ये है कि कंप्यूटर्स आपके इमोशंस समझ पाएँ। अभी कीबोर्ड माउस से आप इंटरेक्ट करते हैं ना कंप्यूटर से, तो कीबोर्ड माउस हो ये तो उसको पता नहीं चलता गुस्से में दबा रहे हैं या खुशी में दबा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर आप जब कैमरा और फिर कीबोर्ड माउस से आप जब टाइपिंग करते हैं तो उस योर इमोशंस गेट रिकॉर्डेड एज वेल, ठीक है। तो देयर इज़ समथिंग विच आई हैव ऑलरेडी डन एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, बट आई वांट टू कमर्शलाइज इट। तो आई फील कि नेक्स्ट 20 ईयर्स इंशाल्लाह एटलीस्ट 2 कंपनीज होंगी और अच्छी होंगी, और फिर शायद मैं एकेडमिक्स को छोड़ के ना उसी में होंगी। So we'll wrap things up finally. So thank you for coming, Zahid, and giving us your time. Okay. And so this was it. So bye. Hafiz. 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 Bye 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 bye. Bye.